Thank you very much. बहुत धन्यवाद ब्रजवल्लभी माता जी का. I'm so grateful to her that she has invited me in the assembly of all of you wonderful devotees connected to Shri Shri Radha Gopinath, and in case there are other devotees as well, because I have been learning right from my very beginning. All these 21 years I spent in ISKCON, majority of the education I received from the glorious devotees of Shri Shri Radha Gopinath ISKCON Chowpatty. So I'm very, very grateful to all the great devotees, like of course led by His Holiness Radhanath Swami Maharaj, and as Radha Gopinath Prabhuji, as is Gaurwal Prabhuji, as is Gaurang Prabhuji, Braj Vihari Prabhuji, so many great devotees. So Baldev Prabhuji, so many devotees are there. So I'm learning from all of them. So I'm very, very grateful to them, and that way I feel privileged to be part of this assembly of devotees, especially the devotees connected to Shri Radha Gopinath. Radha Gopinath are very, very dear to me, very close to my heart. His Holiness Radhanath Maharaj is extremely close to my heart. I love him so much, and I love all of you as well. So thank you very, very much for inviting me to be of some service to all of you. Hare Krishna. So shall we start taking questions? Yeah. Yes, Prabhu. Yes. So we have the first question that we have is, how can we easily join ourselves with Krishna in Krishna consciousness, I guess, in the busy schedule of our lives, because we don't have so much time. We have to work for about 12 hours every day. Oh, I see. You know, and although we talk about time management in our life so that we can take out time for Krishna consciousness, but there is no such thing as time management actually. There is only priority management. Anything which is in your priority will have time, Like for example, say on Valentine's Day, people have time for their girlfriend. They do everything very fast. They skip their तमन्ना है, प्यार का इरादा है, आज मुझे उससे मिलना है भाई आज तो. So that is, they work so hard, they work so fast, they skip their lunch, they don't do gossiping because today at 5 p.m. I am to log off, I have to be with my girlfriend, because the girlfriend is a priority. So anyone who is in priority, anything which is in priority will have time, for sure. Yen Kien Prakarin will have time. So we are to see that anything which we are struggling for, to have time for, we should actually first of all get that thing into priority, and then time would be available. Like for Srila Prabhupada, translation of the books was priority. So from 1 a.m. till 4 a.m., 3 hours every day, he would do translation. Who can even think of doing this from 1 a.m. 4 a.m.? My God, he's sleeping from 11 p.m. till 1 a.m. Only 2 hours of sleep, because this is in priority. So anything which is in priority will have time. And somewhere also we need to work in a way which is very conducive to devotional service. In case there are some jobs which are too demanding in terms of time, too demanding in terms of energy, too demanding in terms of mental involvement, then excuse me, somewhere we need to change our job. Even for that, we are ready to earn less, live in a simpler accommodation, have simpler food, because I am having less financial resources. So somewhere we have to do that. Like Hari Pashatu, you might have heard of him. Hari Pashatu is member of Shastric Advisory Council committee, and he is well qualified, but he is doing a simple job of a teacher in a college so that he can have more time for Shastric study. So he's giving that a priority, and that's why he's having time for this particular activity. So anything which is in priority will have time, actually. So there is no such thing as time management. No, we cannot do all things in a limited time. We can only do those things which are in priority, which are really important to me. And rest other things, bye-bye. If we have time, we would cater to them, but not always actually. So anything which is in priority means there should be a very solid, heart deep reason to do that activity. And then you are convinced that, yes, I must do that activity. So just see whatever you are seeking to do, give it a priority and live a simple form of life, especially in terms of professional occupation. Thank you, Prabhu. Another question is, what should a person do who is not getting devotee association in their life, and that is why they are feeling hopeless and helpless, because they're not getting it? Now, thankfully, now this online association is here. So many of the devotees are having these kind of forums where they are getting devotee association. Like I know from ISKCON Dwarka, there are devotees who have joined Anand Vrindavan Prabhuji's Zoom classes and Zoom sessions. In the morning, they just have japa together. That's it. No class, just japa session. So all of them, those who have joined in the Zoom, they have their videos on,
and they sit and they chant. They have their mute on mute, but they chant. So everybody can see anyone else and all others who are chanting Hare Krishna. So these online sangha is there. Or so many lectures are there of some great devotees, Amrendra Prabhu, Gaurang Prabhu, Radhanath Maharaj, Radha Govind Maharaj. So many great devotees, they are there online. So listening to them online, that's also one more option. And also reading Srila Prabhupada's books. In case we are not able to do physical association of devotees, then we do Grantha association, books association. So in this way also we can cater to that need of devotees association. As I mentioned, that anywhere which is in priority, anything which is very important for me, I will find out a means so that I can do that activity. Like for example, devotees association. In case somebody is staying far away from any of the ISKCON temples, well, there are many online sanghas now available. There are devotees now having sangha even all across the globe. Somebody who is in Belgium, somebody who is in Japan, somebody who is in India can be in one forum and they are discussing Krishna consciousness. Why not? So these platforms are there, although they are not substitutes for physical association. They are not substitutes at all. But in case we are not able to have physical association, then they are certainly very good alternatives. Thank you so much, bro. There's one question in Hindi. There might be some in both languages. So इनका प्रश्न है कि इनके मन पे उनको बहुत संशय आते हैं कि सही जगह पे है या भगवान कौन है, कृष्ण ही भगवान है या क्या सही है, वैष्णव सही है क्या, क्योंकि किसी के मन में झांक के देख नहीं सकते कि वो अंदर से क्या सोचते हैं। तो क्या माया का आवाज है और कौन सा भगवान का आवाज है, तो क्या करना चाहिए? वैसे तो क्या करना चाहिए, जब अगर किसी को बहुत डाउट्स हैं, अगर डाउट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल डाउट्स हो सकते हैं, किसी को पता नहीं फिलॉसफी सही है कि नहीं है, कल्चरल डाउट हो सकते हैं, लाइक कल्चरली वी हैव वेरियस काइंड ऑफ एटिकेट्स एंड डीलिंग्स, क्या वो सही है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल डाउट्स हो सकते हैं, पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन ही सही है कि है या नहीं है, पर्सनल डाउट हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सब सही है, ये आदमी ठीक है कि नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ डाउट्स कैन सर्टेनली अराइज। लेकिन डाउट्स को दूर करना ये तभी दूर होता है व्हेन वी कन्फ्रंट द डाउट्स। जैसे फियर्स को जितना हम कन्फ्रंट करते हैं उतना ज्यादा फियर्स को हम जीत पाते हैं, उसी तरह से डाउट्स को जितना हम कन्फ्रंट करेंगे, यानी कि उनको एड्रेस करेंगे, उतने ज्यादा हम डाउट से दूर हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें एक्चुअली जाकर के एक कंसर्न अथॉरिटी से जाकर पूछना चाहिए कि ये जो डाउट मेरे मन में आ रहा है, ये रियलिटी भला ऐसी क्या है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल समबडी मे रीड समथिंग ऑन इंटरनेट, ऐसा ऐसा हुआ था इस्कॉन के साथ 80s में, फला फला इनके स्वामी जी गिर गए थे, फला फला इनके जो शिष्य थे प्रभुपाद जी के, सन्यासी लोग कुछ गिर गए थे, तो ये पता करेंगे यार ये क्या माजरा क्या है। इस तरह के डाउट आ सकते हैं, फिलोसॉफिकल डाउट आ सकते हैं, क्या चीज लिखी है, कहाँ प्रभुपाद जी ने हर चीज को भक्ति के भाषा में क्यों ट्रांसलेट किया है। इवन इफ इट इज मेंशन एज भक्ति योगा, प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। इवन इट इज ध्यान योगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। भाई ये तो भाई ये तरह भक्ति का मामला बना अगर कहा, क्या बात है भाई। So these kind of doubts can certainly come. Like in Bhagavatam there comes the mention of कि there are eagles who can pick up even elephants. अरे यार ये कौन सी ईगल है जो कि एलिफेंट को उठा के पटकते हैं भाई। These kind of doubts can come. तो इसीलिए डाउट्स को दूर करने के लिए हमें कंसर्न अथॉरिटी के पास जाना चाहिए कि माजरा क्या है। और जब चीजों में गहराई में जाते हैं ना, गहराई में जाके ना फिर होता है कि डाउट से दूर होता है, we feel so relaxed. ऐसा होता है। मतलब मुझे याद है when I was in college, तो उस वक्त ये जो ऋत्विक है उन्होंने ये निकाला हुआ था कि they have changed the books of Srila Prabhupada. So I asked the devotee, प्रभु जी क्या माजरा क्या ये, क्या बुक्स चेंज हो गई। तो भक्त ने बताया अरे नहीं भाई बुक्स चेंज हो गई, आप भक्त बने ना, प्रभुपाद जी बुक्स चेंज हो गई तो वही भक्त है, आप कैसे भक्त बनते। अरे बात तो बिल्कुल सही है जी। फिर उन्होंने बताया ओके देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। प्रभुपाद जी ने बुक्स को डिक्टेट किया है, सो इट्स द स्पोकन इंग्लिश, तो उसको फिर एडिटिंग की तो उसको फिर रिटन इंग्लिश में थोड़ा किया गया, तो इसलिए कुछ चेंजेस करने पड़े। कुछ चीजें प्रभुपाद जी के बंगाली एक्सेंट में थी, जो अंग्रेजी भाई था हमारा विदेशी भाई था उसने कुछ और सुन लिया। जैसे फॉर एग्जांपल द लॉर्ड इज वर्शिप्ड विद सेंटली आर्टिकल्स, तो उसने लिख दिया सेंटली आर्टिकल्स, द लॉर्ड इज वर्शिप्ड विद सेंटली आर्टिकल्स। बाद में ध्यान से सुना, अरे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं द लॉर्ड इज वर्शिप्ड विद सेंटेड आर्टिकल्स। ओहो तो सेंटेड आर्टिकल्स था भाई, हमने सेंटली आर्टिकल कर दिया। सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस दे केम। तो इस तरह तो प्रभुपाद जी की कुछ बंगाली एक्सेंट की बात थी, तो अंग्रेजी भाई ने कुछ, अंग्रेजी हमारे भाई साहब थे उन्होंने कुछ और लिख दिया, इसलिए कुछ चेंजेस करने पड़े। पहले बोला कुछ और था लेकिन कुछ और दिया था उसने, अब हमने सही चीज लिखी है उसको, ऐसा। सो इस तरह की चीज, रिडंडेंसी, एक सेंटेंस को दोबारा नीचे लिखा हुआ है, एडिटिंग मिस्टेक्स हुई थी उस वक्त, जल्दी जल्दी में हो गई थी, तो इस वजह से भी कुछ चेंजेस करने पड़े।
और भाषा में कुछ चीजें नई नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल इल फॉर्च्यून लेटर ऑन बिकेम इल हाइफन फॉर्च्यून, तो हाइफन ऐड किया गया, तो इस तरह के चेंजेस भी हुए। तो इस तरह से मेरा जब डाउट्स जब एड्रेस किया गया, एड्रेस करे तो सारे डाउट्स दूर, दैट्स इट। सो व्हेनेवर वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ डाउट्स, हमें जाकर ये कंसर्न डिवोटी से पूछने चाहिए, उनको अंदर अंदर नहीं रखने चाहिए। डाउट्स क्या होते हैं, डाउट्स अगर रह जाएंगे ना चेतना के अंदर, तो ये गहरे होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, और then they sink into our consciousness and they become very deeply rooted। और इसका रिजल्ट फिर होता है कि ऐसे लोग फिर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे, भक्तों संघ छोड़ देंगे, हरे कृष्णा छोड़ देंगे, दिस व्हाट हैपेंस। तो इससे बजाय कि हम ये स्टेप उठाएं कि हम भक्तों संघ छोड़ दें, it is good that we actually associate with devotees, ask the devotees frankly, प्रभु बुरा माने का, I got this question, ये चक्कर क्या है जी, ये माजरा क्या है, ये you should ask and then get clarified things and then faithfully move ahead। Thank you so much, bro. So somewhat not exactly related but somewhat कि ऐसा अगर प्रश्न पड़ता है कि हम कुछ कर रहे हैं भक्ति, कुछ सेवा कर रहे हैं, तो भगवान हमारी ये सेवा एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी सेवा करने के बाद डिवोटीज खुश हैं आपसे, इसका तो मतलब भगवान आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। डिवोटीज हैप्पी, भाई बड़ी अच्छी सेवा की आपने, थैंक यू वेरी मच, बड़ी बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं आप। अगर भक्त अगर मुस्कुरा करके हैप्पीली आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, दैट मींस आपकी सेवा स्वीकार हो रही है। साथ ही ऐसी सेवा जो कि वाकई में भगवान ने स्वीकार की है, ऐसी सेवा होने के बाद यू फील लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ना परमात्मा भी हमारे हार्ट में ना, एनीथिंग व्हेन वी डू गुड देन परमात्मा सुपर सोल आल्सो अप्रूव्स एंड वी फील इट, बड़ा संतोष लग रहा है। लाइक ऑन जन्माष्टमी यू वर्क वेरी हार्ड, और बहुत मेहनत करने के बाद रात को आप बड़े थक जाते हो, लेकिन एक अन्ना सुकून सा होता है, अरे प्रभु की सेवा में ना आज हाय, लेकिन अच्छा लगा प्रभु, सो नाइस, दिस परमात्मा सर्टिफाइंग दैट यू डिड अ गुड जॉब। जैसे अगर कोई ना कीर्तन करे अगर, और आप कीर्तन वाकई में आपने बहुत अच्छा किया हो, जिसमें ना भक्त बड़े खुश हुए हैं, इवन यू फील सेटिस्फाइड, ना कीर्तन अच्छा। अगर आप एक अच्छा लेक्चर दो अगर, और वाकई में लेक्चर आपने अच्छा दिया, वेरी हैप्पी, परमात्मा सर्टिफाइज फ्रॉम द हार्ट, अरे अच्छा दिया, वेरी गुड। सो डिवोटीज वुड सर्टिफाई फ्रॉम आउटसाइड and super soul will certify from inside, yes, the seva has been accepted। Thank you so much, bro. There is one question around how to chant properly. We don't know how to chant properly. Can you please? Okay, how to chant properly, तो मतलब ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हालांकि चैंटिंग में ना दो विलन है, वैसे तो मोटा मोटा देखा जाए चैंटिंग के दो विलन है, एक है नींद और दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहला जो विलन आता है वो नींद ही है। जपा करते वक्त इतनी बढ़िया नींद आती है, ओए होए होए होए, हरे कृष्णा हरे राम राम, और क्या नींद आती। कभी कभी इतनी साउंड स्लीप बंदे को आधा पौना घंटा कैसे निकला पता नहीं चला। वो देखा 7 के हो गए 7:45, कब हुआ ये समय, कैसे बीता भाई, पता ही नहीं चला। तो इससे सबसे पहला जो विलन है चैंटिंग का वो है नींद, जो कईयों को नींद आती है, आज कईयों को आती है। स्पेशली अगर आपने रात को सही से रेस्ट नहीं किया हुआ है, रात को आप लेट सोए थे, रात को आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी, अमेजॉन प्राइम वीडियो से मूवी देखी, और फिर आप सुबह उठ गए, चलो जपा भी करेंगे, नहीं सर अब आप जपा आपको सुला देगा, मेरे लाल तूने कल रात को मूवी देखी डिज्नी हॉटस्टार पे, आप सो जा बेटा, क्योंकि तू सिर्फ 4 घंटे सोया है, आप सो जा। तो रात को अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको नींद आएगी। एक और जो कारण है नींद आने का वो है बॉडी में विटामिन की कमी। बॉडी में विटामिन की कमी की वजह से भी बहुत बढ़िया नींद आती है आजकल, तो ये एक और कारण। तीसरा कारण है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, जैसे दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया, वो ये है कि ना हम लोग पानी कम पीते हैं। हम लोग पानी कम पीते हैं, ऑफकोर्स वहां तो मॉइस्चर बहुत रहता है क्योंकि आप समुद्र के पास है मुंबई, लेकिन दिल्ली में क्या है, दिल्ली में तो समुद्र है नहीं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में समहाउ यहाँ की हवा ऐसी है, हम लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से क्या होता है, बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो वार्म होता है। वो जो वार्म होता है तो ये वार्म ब्लड ही हमारे सर में पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचता है, और सर में अगर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हॉट ब्लड का, वार्म ब्लड का, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है ये व्यक्ति थका हुआ है, इसलिए अब इसको सो जाना चाहिए। बॉडी का ये ऑटो फंक्शन है सो जाने का, बिकॉज दिस पर्सन इज टायर्ड, इसको सो जाना चाहिए। तो पानी कम पीने की वजह से बॉडी में हीट होती है, उस हीट की वजह से हमें नींद आती है। या फिर अगर आप खाली पेट, कई लोगों के खाली पेट में ना गैस बनती है, और गैस भी सर पे चढ़ती है, उसकी वजह से भी नींद आती है। नाम में रुचि नहीं है हमारी, इसकी वजह से भी नींद आती है। नाम की महिमा पता ही नहीं हमको, इसकी वजह से भी नींद आती है।
अगर आप बहुत ही कोजी एनवायरनमेंट में अगर आप चैंटिंग करते हैं, जैसे आपका घर है या समटाइम टेंपल हॉल के अंदर, क्या सारे दरवाजे बंद, अंदर हीटर वीटर हमने जलाए हुए हैं, कोजी कोजी हो रखा है, उस कोजी कोजी जगह पे आप जप करना शुरू करते हैं और आराम आराम से मध्यम मध्यम प्यार प्यार से जप कर रहे हैं आप, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। क्यों? अरे कोजी जगह में तो हाँ अच्छा लगता है, सो जाओ। सो सो कोजी, कोजीनेस, जहाँ फ्रेश एयर नहीं आ रही है उसकी वजह से भी नींद आती है। तो किसी ऐसी जगह पर बैठे, इट कैन बी योर बालकनी, बालकनी में ऐसी जगह बैठे ना कि मुंह बाहर की ओर नहीं करना आपको, मुंह अंदर की ओर करके बैठना है, जहाँ फ्रेश एयर आ रही है, ऐसी जगह पर बैठ करके हमको थोड़ा ऊंचे स्वर में जपा करना चाहिए। अगर हमको नींद ज्यादा आती है तो ऊंचे स्वर में जपा करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो नींद आ जाएगी, नहीं तो ये बहुत, ये बड़ा कॉमन विलन है ये, वो है नींद। ऐसी साउंड स्लीप आती है, ओ हो माय गॉड। सो कई डिवोटीज के तो अब नींद के गोली के खर्चे कम हो गए उनके, वाई कहता जी जपा है ना। इनफैक्ट वन डिवोटी वाज शेयरिंग, कहता प्रभु जी मेरे नाम में बहुत श्रद्धा है मेरी। अच्छा क्यों, श्रद्धा कैसे है आपकी? कहता कुछ तो इसमें है जो सुला देता है, पता नहीं क्या है। जैसे ही माला में हाथ लगाता हूं ना, पता नहीं कौन सा बटन दबता है उसमें, यानी इसमें कुछ तो है भाई जो सुला देता है भाई, यानी नाम में कुछ तो है, नाम खाली नहीं है भाई, नाम में प्रभु बैठे तो है वाकई में। वो बटन दबाना होता है कृष्ण प्रेम का, बटन दब जाता है नींद का, तो सो जाता हूँ। तो ये पहला विलन है, नींद। अगर आपको नींद आ रही होती है, वैसे बेस्ट है कि ना हमको बैठ के जब करना चाहिए, नहीं बैठ कर आपको झपकियां आ जा रही हैं, तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए, मेरे को नींद आ रही है, इसलिए मेरे को बैठ के जपा नहीं करना है। कई लोग ना बैठे रहते हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि नहीं मेरे को नींद आ रही, कोई उठा दिया अगर सो रहा है, कोई उठा दे, हरी बोल, हाँ हाँ क्या सो रहे हो आप प्रभु, सो रहे हो? नहीं, आई वॉज डूइंग मेडिटेशन बाबा, समटाइम्स आई डू मेडिटेशन बिफोर चैंटिंग, आई ऑफर सम सिंसियर प्रेयर्स। अच्छा ठीक है, देखो इसमें अपनी ईगो नहीं लगानी चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, मेरे को नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई शुड गेट अप। खड़े हो जाना चाहिए, खड़े होकर जपा करना चाहिए। खड़े होकर भी अगर आपको जपा आ रहे हैं, आपको नींद के झोंके आए जा रहे हैं, तो थोड़ा चल के जपा करना चाहिए। आपको चल के भी अगर नींद आ रही है तो फिर दौड़ना नहीं चाहिए, जाके सो जाना चाहिए। ऐसे बोलना चाहिए माला को, हे हरि नाम प्रभु, मेरे को अभी इतनी नींद आई हुई है कि मैं अभी जपा नहीं कर सकता, मैं आपसे 1 घंटे बाद मिलूंगा, हरि बोल, और जा करके सो जाइए, फिर उठिए और जपा करिए। ठीक है जी। सो ये तो पहले विलन के साथ डील करना हो गया, विच इज निद्रा। ओके, निद्रा के बाद जो दूसरा ऑब्स्टेकल आता है, जब निद्रा नहीं भी है, अगर नींद नहीं आ रही है आपको, जपा कर रहे हैं आप, तो सेकंड विलन है वो है डिस्ट्रैक्शन, विक्षेप, यानी मन का भटकना। और मन कहाँ भटकता है? मन यूजली या तो पास्ट में भटकता है, या फ्यूचर में भटकता है, या फिर आसपास की सराउंडिंग से भटकता है, कौन क्या कर रहा है, उठ रहा है, उसकी गोपी ड्रेस, ये गोपी ड्रेस कब आई राधा गोपीनाथ टेम्पल में यार, ये तो मेरी नजर ही नहीं पड़ी इसके ऊपर, तो हाउ कम, इसका जूट का यार कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे ये आ गया भाई, ये तो बहुत ही बेकार आदमी है, कभी अकेले मिल जाए पीट दूं इसको मैं तो, घटिया इंसान है का, हरे राम 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 हरे हरे। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। सो डिस्ट्रैक्शन जो है सेकंड विलन है। अब डिस्ट्रैक्शन से बड़ा कैसे डील किया जाए? डिस्ट्रैक्शन डील करने का सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वो ये है मॉर्निंग जपा। आप देखिए रेस्ट ऑफ द डे में हम जो जपा करते हैं ना, इट इज नेचुरली इनटू डिस्ट्रैक्शन। रेस्ट ऑफ द डे अगर आप जो जपा करते हैं उसमें जाएंगे आपको 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट लगते हैं एक माला के अंदर, और जो सुबह आप जपा करते हैं उसके अंदर लगते हैं 6.5 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट, 6, 6.5 मिनट, 7 मिनट, 6 से 7 मिनट के बीच में माला होती है, कुछ लोगों की 5.5 मिनट में आती है। क्लियर प्रोनाउंसिएशन में 6, 6.5 तो लगेंगे लगेंगे। लेकिन दिन में, दोपहर में, शाम को, उसमें आपकी माला रगड़ा मारी होती है, अरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, फिर वो कहते हैं कृष्ण प्रेम तो मुझे मिला नहीं, मैंने इतने साल जपा किया। कभी अपना सीसीटीवी कैमरे में इनके वीडियो दिखाओ इनको जो जपा किए इन्होंने इतने साल। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो होती है ये आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट को तो माय गॉड, नाइट को सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो बिस्तरा होता है। बिस्तरा पुकार रहा होता है, दिल पुकारे आ रहे आजा मेरे गले लग जा, दिन भर का थका हुआ है आत्मा मेरे पे लेट जा,
तो बिस्तर पुकारना होता है। तो इसलिए रात को अगर आपकी माला बची हुई है, नेवर एंटर योर बेडरूम। अगर आप बेडरूम में गए तो बिस्तर जो पुकार रहे हैं गाने गा गा करके, हाँ हो गया जी। तो इसीलिए आपकी माला बची हुई है, नेवर एंटर योर बेडरूम। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो है वो बेड ही होता है। बेड इज बैड अगर आपकी जपा माला बची हुई है तो, सो गो अवे। तो बेस्ट रहता है कि ना मॉर्निंग में जपा करें। मॉर्निंग जपा इज द बेस्ट। इसलिए बोला जाता है मॉर्निंग में जो हम जपा करते हैं उसको बोलते हैं राउंड्स। रेस्ट ऑफ द डे व्हाट वी डू इज रेक्टेंगल, rhombus, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स। लेकिन राउंड्स जो होते हैं वो मॉर्निंग में ही होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, 16 राउंड्स मॉर्निंग जपा, that's important. The rest of the day it is rhombus, triangle, cuboid, cone, cylinder, all these shapes, but rounds आपको दिन भर में करने में थोड़ी मुश्किल जाएगी। So इसलिए अटेंटिव चढ़ने के लिए मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट। उसके लिए रात को सोना टाइम से जरूरी है, सुबह टाइम से उठना जरूरी है। एंड यू फिनिश योर राउंड्स, कंप्लीट योर राउंड्स, आई नॉट से फिनिश योर राउंड्स, कंप्लीट योर राउंड्स। आप देखो दिन भर में आपके ना काम ज्यादा एफिशिएंट होंगे, यू विल बी मोर फोकस्ड, आपके काम भी होंगे। यस, मेरा एक्सपीरियंस है, व्हेन आई वाज वर्किंग, मैं जब कभी लेट उठा आलस में, थोड़ा और रेस्ट कर लेते हैं यार, उठे 7 बजे उठे, फिर उसमें 4 माला रगड़ा मार कर ली, उसका फिर अपना 7:30 बजे ऑफिस के लिए निकल गया। अब ये जिस दिन ये ऐसा किया ना, काम में भी इनएफिशिएंट रहा मैं, ये काम फंसे रहे मेरे, और ये इसको ईमेल भेजी उसका रिप्लाई नहीं आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, झगड़ा झाटी भी हो गई किसी से, अरे ऐसा कैसे होता है सर, दिस दैट, क्यों हुआ? सुबह सुबह जप्पा ठीक नहीं किया। और जिस दिन मैंने 16 माला की, 14 माला की, अगर सुबह सुबह एंड देन आई गो टू ऑफिस, सारे काम भी होंगे, ज्यादा एफिशिएंट रहूंगा, एरर फ्री काम, रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। ओ वाओ, so इसीलिए अर्ली मॉर्निंग जपा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही वी कैन हैव अ कार्ड, द जपा कार्ड, हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। वो भी कर सकते हैं आप डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। साथ ही डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या है, अगर आप छोटे कमरे में जपा करते हैं ना, दैट इज डिस्ट्रैक्शन फ्री। लेकिन आप जब बड़े कमरे में अगर बैठ गए, जहां पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खाना पीना धूम धड़ाका, हा ही, ऐसी जगह पे आप ध्यान नहीं लगा सकते। तो इसलिए एक छोटा कमरा रखें, बहुत जरूरी है। श्री भक्ति ठाकुर जी का आपने कमरा देखा होगा, जब आप गए होंगे नवदीप में, स्मॉल रूम है, छोटा सा रूम है, वहां पर श्री भक्ति ठाकुर बैठ करके जपा किया करते थे। देन ही वुड लाउडली चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए एक छोटा सा कोई स्थान चुने। सो holy time and holy space is very important to deal with distractions, very very important. साथ ही श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद क्या करते थे, he would in between offer some prayers to the holy name. आप जपा करते करते जो है, you can chant some kind of prayer to the holy name. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम एव केवलम कालो हरे कृष्ण हरे राम। इस तरह जो प्रेयर्स हैं इन द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, वो भले इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो, व्हाटएवर, उनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। एंड देन इन बिटवीन यू कैन say them quickly, contemplating on them, and then get again into chanting. It can be शिक्षा अष्टकम, it can be नाम अष्टकम, whatever, उसमें से कुछ भी आपने एक पैराग्राफ ले लिया, उसको बोला, and then you continue with your chanting like that. तो इससे भी chanting जो है हमारी attentive हो पाती है, because we are constantly doing prayers also. So हरि कथा helps chant हरि नाम in a better way like that. तो इससे भी chanting अच्छी होती है। एक और distraction से बचने का तरीका है, आप ना सर के ऊपर एक कपड़ा ले लें जो कि यहाँ तक हो, जिससे हवा भी जाती रहे, पूरा नीचे तक नहीं, यहाँ तक हो, दैट्स इट, एंड देन यू कीप चैंटिंग। अगर उससे करते हैं तो उसमें भी आपका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज यू डोंट हैव एनी विजुअल्स टू सी। हमारे आसपास से विजुअल्स हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो चींटी जा रही है, वो मिठाई में चली गई, मिठाई के डब्बे में चली गई, हरे राम 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 हरे हरे, वो 3 और पीछे से आ रही हैं, हरे कृष्ण डिस्ट्रैक्शन। तो इसीलिए आंखों पे लगाए एक पर्दा, और आंखों पे पर्दा होगा, then you can't see all of this colorful world, you and I in this beautiful world, ये सब नहीं होगा। Reason being, now I am covered, my eyes are covered. लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप सो भी ना जाए, क्योंकि अगर आंखों के आगे सब अंधेरा अगर आ जाएगा तो फिर तो गुलगुलशन गुलफाम सो सकते हैं आप मस्त एकदम टकाटक। तो आसपास कोई होना चाहिए जो देखे आपका हरे कृष्ण रुक तो नहीं रहा, हरे कृष्ण 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 हरे, रुक गया मतलब एक्सीडेंट हो गया। तो कोई ना कोई होना चाहिए ऐसा जो कि आपके इस बोखे को आपको हेल्पफुल हो आपके लिए, मतलब डिस्ट्रैक्टिंग ना हो। ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी कैन डू।
ठीक है जी। बाकी जितना एंथुसियास्टिकली आप जपा करेंगे उतना ज्यादा आप कम डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, ठीक है। सो दीज टू विलन, अगर हम इन दो से डील कर लेंगे ना, मोटा मोटा ये दो विलन है, सबसे बड़े विलन ये है। नींद जो तमोगुण से आती है, डिस्ट्रैक्शन जो रजोगुण से आता है। तो ये तमोगुण रजोगुण दे आर द मेन विलन्स। सत्वगुण इज गुड फॉर चैंटिंग, ठीक है जी। हरे ओके, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ दंडवत जी बोलिए। प्रणाम। प्रभु जी, हाँ जी बोलिए। वाइल चैंटिंग क्या हम कृष्णा से बात कर सकते हैं? अब चैंटिंग करते हो और क्या बात करोगे? हरे कृष्णा कृष्णा कैसे हो, हरे राम राम राम, माखन खाओगे, ये बातें करोगे? नहीं, लाइक प्रेयर ऑफर करते समय। हाँ, प्रेयर्स ऑफर करते हो, लंबी बातें नहीं करना कि कृष्णा चलो माला तो मेरी हो ही गया, प्रेयर में मेरे को मेरी बड़ी लंबी बातें मेरे को आपसे करनी है। कृष्णा आई लव यू, कृष्णा आप इतने सुंदर हो ना, वो लंबी बातें चल गई आपकी। सो यू कैन ऑफर सम शॉर्ट प्रेयर्स एंड देन फोकस ऑन चैंटिंग, अदरवाइज यू विल बी मोर इमोशनल देन डिवोशनल, राइट? तो ये चीज है। That's true. Thank you so much. Thank you for the Okay, really yes. detailed answer on chanting especially. We have one question around family members who are not Krishna conscious. 2 or 3 questions actually. हाँ, That how do we deal with them, especially when sometimes they are not favorable and they try to pull us away from bhakti, and yeah. how do we get them into devotional life? एक तो ना होता क्या है, देखो भक्त को वैसे तो हम्बल होना होता है, लेकिन हम्बल का मतलब ये नहीं कि कोई भी कंबल डाल करके हमारी पिटाई कर दे। तो इसलिए हम्बल होना चाहिए, वी शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, वी शुड नॉट बी रूड, वी शुड बी वेरी काइंड टू देम। यार एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि हमें कोई डोरमैट बना करके हमारे ऊपर कोई भी कर देगा। अरे होता क्या, कभी कभी ये जो ह्यूमिलिटी की जो क्वालिटी है ना, ये भक्त लोग समझ पाते हैं, बाहर के लोग ह्यूमिलिटी क्वालिटी को नहीं समझ पाते। हमारे यहाँ एक डिवोटी ने ना आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ही सेड, आईवीएफ था यूथ फोरम में, तो यूथ के लड़के आए हुए थे, नए नए आए हुए हैं, उनको बोलते हैं उस भक्त का, देखिए मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ लेक्चर दे सकूं। तो नया लड़का कहता है जो आप में योग्यता नहीं है तो भाई उसको बुलाओ ना, इसमें योग्यता है। सो बिकॉज दिस पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमिलिटी। तो भक्त लोग समझ पाते हैं, हाँ जी अरे नहीं प्रभु बोल रहे हैं इस तरह से, ये तो बड़े लायक है। लेकिन बाहर की दुनिया जो है वो ह्यूमिलिटी को मानती है जो वीकनेस है, कमजोर है यार, और क्या पेच कसो इसके। तो लोग ऐसे लोगों को पेच कस देते हैं। सो समवेयर वी आर टू बी असर्टिव विद आवर फैमिली मेंबर्स। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके रहोगे तो ज्यादा पिटाई भी हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो इससे कहीं ना कहीं असर्टिव होना जरूरी रहता है। ह्यूमिलिटी इज अप्रिशिएटेड बाय डिवोटीज, दैट्स व्हाई। दूसरी चीज आती है कि ना हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर कैसा है घर पे। आप घर में ज्यादा पंडिताइनगिरी करोगे, अगर ज्यादा माताएं जैसे ज्यादा पंडिताइन बनती है, अपने पति को बोलती है तू तो माया में है, दिस दैट, तो घर में ज्यादा पंडितगिरी आराम करेंगे ना, तो फिर कहेंगे, तो माता पिता पति या पत्नी कहेंगे भैया तुम बड़े इस्कॉन में जाके बड़े भगत हो गए हैं। तो इसलिए ज्यादा पंडिताइनगिरी या पंडितगिरी भी नहीं करनी चाहिए घर में जाकर के, आप ज्यादा गुरु जी बने, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत प्यार से उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, दैट्स वेरी नाइस। बाकी उनको बहुत हीन समझना, प्लीज नहाए नहीं ना तुम, गंदे कहीं की ना हो तुम। आई नो वन डिवोटी, उसकी माँ जो है सुबह सुबह उठी और उसको गले लगा रही थी, अरे मेरा बेटा गुड मॉर्निंग, मम्मी प्लीज आप नहाए नहीं हो, गंदे कहीं की ना हो तो। अच्छा पहले तो बड़े गले लगाया करता तू मेरे को, आज तेरे को बड़े शौक पड़े हैं, मैं नहाई नहीं हूँ। अरे माँ आई है तो बाकी माँ को गले लगा, हाँ भैया हरे कृष्णा, ठीक हो माँ, पैरी पहना जी, चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। तो इसलिए घर में ज्यादा पंडितगिरी वगैरह नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे करके उनको बिहेवियर से इंस्पायर करें, वो अच्छा रहता है। बाकी यार घर में हम गुरु जी नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने हमको बढ़ते हुए देखा है ना इस तरह से। हमें और डिवोटीज को घर में इनवाइट करना चाहिए, वो इनको एजुकेट करेंगे, वो इनको प्रेरणा देंगे, वो इनको गाइडेंस देंगे, दैट इज प्रैक्टिकल। तो इसलिए हमें ज्यादा पंडितगिरी नहीं करनी चाहिए घर पे, और भक्तों को इंस्पायर करना चाहिए, वो लोग घर पे आए, इनको प्रेरणा दे, मेरे घर वालों को इनको गाइडेंस दे, दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल। एक और चीज है कि ना हमें घर वालों को ना प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस देने चाहिए भक्ति के, ज्यादा ऑस्टियर, ज्यादा तपस्या वाले एक्सपीरियंसेस नहीं देने चाहिए। मुझको याद है एक समय मैं अपने रिश्तेदारों को ना वृंदावन ले गया था, वही मई के महीने में, पूरा वृंदावन तवा बना हुआ था एकदम, इट वाज सो हॉट। तो इसीलिए वो लोग, मैं उनको गोस्वामी मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ, ये मंदिर वो मंदिर, लेकिन ना वो तड़प गए उसमें पूरा पूरा। उसके बाद सालों साल वो कभी वृंदावन ट्रिप में गई नहीं। वो जो एक्सपीरियंस था ना जी, हम तो भाई तो टिक्कियां बन गई गर्मी के अंदर, उफ। तो हमें बड़े पैलेटेबल एक्सपीरियंसेस देने चाहिए अपने रिश्तेदारों को। लाइक फॉर एग्जांपल यू मे कुक समथिंग वेरी नाइस, आपने कुछ बहुत बढ़िया टेस्टी बनाया, उसको भोग लगाया और फिर आपने समय बांटा, हमने कहा जी क्या जी, अजी प्रसाद है,
अच्छा ये रसमलाई प्रसाद है, वाह, वही कृष्णा कॉन्शियसनेस बड़ी अच्छी चीज है। तो लोगों को ना हमें पैलेटेबल एक्सपीरियंसेस देने चाहिए अपने परिवार वालों को, ताकि दे आर एनकरेज टू डू भक्ति लाइक दैट। बाकी ना उनको कभी ये नहीं मतलब फील करना चाहिए कि आप लोग कितने हीन हो, कितने गिरे हुए हो, पापी कहीं के ना माया में फंसे हुए, तुम लोग तो ये फने हो, ढिमके हो, ये सब ना कभी नहीं करना चाहिए। मोर वी आर लविंग एंड अफेक्शनेट टू देम, देन दे कैन कम टू भक्ति वेरी इजीली। तो हमारा बिहेवियर इज नंबर वन वे ऑफ प्रीचिंग। हमारी क्या मैंने देखा भक्त लोगों ने घर में दे बिहेव इन अ वेरी कर्मी वे, सो वो भी नहीं करना चाहिए। लाइक वन डिवोटी ही टेल्स हिज पेरेंट्स कि ना आप लोग डिवोटी बनो, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन यार तू बड़ा भगत बनता है कि गर्लफ्रेंड क्यों पाल के रखी है तूने। तो वो क्या की मतलब कि क्या बोलेगा वो। तो इसे घर में हमारी हरकतें भी ऐसी होनी चाहिए जो भक्तों वाली हों, ये भी जरूरी है, राइट। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे करके वी कैन इंस्पायर देम टू बिकम डिवोटीज। थैंक यू सो मच फॉर देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस अराउंड कंसिस्टेंसी, कि हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ दिन अच्छी भक्ति करते हैं फिर एकदम स्लैक हो जाता है, तो कैसे yes. एक ही लाइन पे रहे। या कंसिस्टेंसी में ना एक जो सबसे बड़ी बात आती है वो है अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठता हूँ 8 बजे, मैंने कल से डिसाइड किया बस 4 बजे उठना है, ये अनरियलिस्टिक है, ये अनरियलिस्टिक है। सीधे आप 8 बजे से 4 बजे तक उठना शुरू कर दोगे, एक दिन हो सकता है उठ जाओ आप, लेकिन दिक्कत जाएगी। Anything which is gradual is more substantial. I repeat, anything which is more gradual is more substantial. तो इसलिए आप जितने ग्रेजुअल चेंजेस लेकर के आएंगे ना लाइफ के अंदर, उतने ज्यादा वो सब्सटैंशियल चेंजेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वही पढ़ाया लिखा नहीं कि यू आर डोंट रीड प्रभुपाद बुक्स एट ऑल, आप सोचा कल से 3 घंटा पढ़ना है, ये अनरियलिस्टिक है, इसमें कंसिस्टेंसी कभी नहीं आने वाली। सो एनीथिंग व्हिच इज ग्रेजुअल इज सब्सटैंशियल। अभी आप नहीं पढ़ते, ओके एवरीडे हम 5 मिनट पढ़ेंगे भाई, एवरीडे वी वुड स्टडी फॉर 5 मिनट्स, दिस इज रियलिस्टिक गोल। घड़ी में देख करिए 5 मिनट, अच्छा ये 5 मिनट कब होंगे, ब्रेकफास्ट से पहले के 5 मिनट होंगे दिए, वेरी गुड, इसमें कंसिस्टेंसी आएगी। हर वो चीज जिसको अपने प्रसाद फंसा दिया ना अगर, उसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये प्रसाद तो हम खाएंगे खाएंगे जी, दुनिया में प्रलय आ जाए भले, लेकिन प्रसाद नहीं छोड़ने वाले हम। तो इसीलिए हर वो चीज जो प्रसाद आ जाती है ना, तो वो तो जी होगी ही होगी। सो बी वेरी रियलिस्टिक, स्टार्ट स्मॉल। प्रभुपाद जी बोला करते थे थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटे से करो। तो इसीलिए जैसे पढ़ना ही अगर ओके मेरे को पढ़ने की आदत नहीं, हाँ जी पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं, छूट गई जी, हम तो चैंपियन पढ़ पढ़ के हमने कॉलेज निकाले अपने, ओके अब क्या करें, सर 5 मिनट पढ़ेंगे, जस्ट 300 सेकेंड्स, दैट्स इट। इवन ये भी आपको मुश्किल लगता है 2 मिनट्स, स्टार्ट स्मॉल, तो ये करना चाहिए। तो इसको धीरे धीरे करके बड़ा करेंगे हम, उससे होता है। सेकेंडली क्या होता है, जो भी आप करना चाहते हैं ना उसके ना रिपोर्टिंग करिए। रिपोर्टिंग करने से क्या होता है, हमारी ईगो फंस जाती है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल कितने बजे उठते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, कितने बजे आपका जपा पूरा हुआ, उसकी रिपोर्टिंग लेकर के आ जाइए। रिपोर्टिंग जब लेकर के आते हैं, रिपोर्टिंग से ना हमारा मान सम्मान, हमारा सेल्फ एस्टीम, वो सब दाव पे लग जाते हैं। ओ जैसे मेरा एक ग्रुप है, हम 3 ब्रह्मचारी, हम लोग ऋषि कुमार प्रभु, एक है सर्वप्री प्रभु और एक मैं, हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, उसका नाम है 3 मॉस्किटोज। आपने सुना 3 मस्केटियर्स। सो हमने बनाया 3 मॉस्किटोज। सो हम लोग हैं वो 3 मॉस्किटो, पहला मॉस्किटो मैं हूँ, दूसरे मॉस्किटो ऋषि कुमार प्रभु, तीसरे मॉस्किटो वो। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी साधना इस पे शेयर करते हैं, हमने क्या रीडिंग की, माला हमारी कितने बजे हुई, और क्या क्या किया, कितना प्रजल्पा किया, उसमें प्रजल्पा का भी है, हमने आज कितना प्रजल्पा किया, हमने आज कितनी गप मारी आज, उसका वो भी सेक्शन है उसके अंदर, वो करते हैं। और ये शेयर करते हैं जब कोई व्यक्ति वीक पढ़ रहा होता है तो बाकी दोस्त भी कूद पड़ते हैं उसके ऊपर, कहते हैं अमोघ लीला प्रभु भाई हफ्ता हो गया भाई, तुमने रीडिंग हियरिंग नहीं की पूरे एक हफ्ते का, हफ्ते दोनों कूद पड़ेंगे, मेरे पेज कर देंगे वो लोग, तो मैं फिर रीडिंग हियरिंग इंप्रूव करूंगा। को किसी और ऐसा कोई और दिक्कत जा रही है, लेट उठ रहा है, मंगल आरती वो मिस कर रहा है अगर, तो मैं और दूसरा जो है तीसरे टूट पड़ेंगे, कहते क्यों भाई क्या क्या चल रहा है भाई, ये क्यों नहीं जा रहे मंगल आरती पिछले 4-5 दिन से, पेज कर देंगे तीसरे वाले के। तो इस तरह से क्या है हमारे फिर बीच में ही रहता है भाई, वी आर टू डू बेस्ट टू द बेस्ट, नहीं तो बाकी दो जो है पेज कर देंगे हमारे। और क्योंकि हमारी दोस्ती है, वी डोंट टेक एनी ऑफेंसेस आल्सो, हम लोग गाली में देते हैं एक दूसरे को, कोई समस्या नहीं है, जब मिलते भी हैं तो एक आध घूंसा भी देते हैं एक दूसरे को। सो दैट मींस जब ऐसा रहता है लाइफ के अंदर, तो हमारी लाइफ में दोस्त भी होने चाहिए ऐसे, जिनके साथ हम रिपोर्टिंग करें, दिल शेयर करें। इनफैक्ट मैंने देखा है लोग शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु साथ शेयर नहीं कर पाते कुछ चीजें, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी यार, गुरु महाराज को पता लगेगा हम ये टपोरीगिरी का काम किया हमने, लेकिन दोस्तों के साथ सब शेयरिंग हो जाती है, दोस्तों के साथ गाली वाली भी हो जाती है सब, और उसमें कोई ऑफेंस भी नहीं होता है। इसलिए एक रिपोर्टिंग लेकर आनी चाहिए, आप जो भी चीज करें उसमें एक रिपोर्टिंग लेकर के आए, उससे भी जो है आपकी कंसिस्टेंसी आ रही है।
साथ ही कंसिस्टेंसी आती है हर उस फैक्टर को रिमूव करके जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करता है टू इन बीइंग कंसिस्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स। अब अगर किसी ने कंसिस्टेंटली सुबह सुबह जपा करने का सोचा है, एक जो चीज जो कि जपा में विलन बनती है वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन इज लाइक एन अप्सरा। पहले ना जब ऋषि मुनि जब जपा क्या करते थे, उनके साधना करते थे, उनके आसपास अप्सराएं आती, तक दिन करने वाले आया करते। अब ये अप्सराएं आती नहीं। अप्सराओं ने एक रूप लिया है, उसको बोलते हैं ये स्मार्टफोन। इस रूप में आजकल अप्सराएं अवेलेबल है। तो ये हमारे आगे बैठ के तक दिन कर रही होती है, मुझको चेक कर ले, मुझको चेक कर ले, एक व्हाट्सएप चेक कर ले, एक यूट्यूब में घूम ले, थोड़ा सा इंस्टाग्राम में थपड़ीबाजी कर ले। तो ये ऐसे बैठ करके तक दिन हमारे जवा कर रहे होते हैं, आगे तक दिन कर रही होती है। तो कई ऋषि मुनि होते हैं हमारे ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं चलो जपा किनारे करते हैं, आज हम अप्सरा के साथ थोड़ा समय बिताएंगे। फिर अप्सरा के साथ जो समय बिताएंगे तो कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? तो हर वो चीज जो अप्सरा का काम कर रही है, जैसे मोबाइल फोन एंड ऑल दैट, इन सबको दूर करें उस एक्टिविटी से आप वो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जपा, रीडिंग। इस फोन को लें, इसमें मैं क्या करता हूँ, इस फोन को मैं जपा के समय में इसको मैं अलमारी में ऊपर डाल देता हूँ साइलेंट करके। अब मैं जपा करूंगा, नथिंग एल्स, दैट्स इट। आई एम हैविंग अपॉइंटमेंट विद कृष्णा। अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो नरेंद्र मोदी जी के साथ, फोन साइलेंट पे होगा ना अपने आप, फोन साइलेंट कर, मोदी जी के साथ अपॉइंटमेंट है, पागल कहीं का ना हो तो। अच्छा, मोदी जी के साथ फोन साइलेंट पे होगा, भगवान के साथ फोन ऑन रहता हमारा जी। तो इसलिए हर वो चीज जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली है हमारी कंसिस्टेंसी में, उसको जो है अपनी आंखों से दूर कर दे कि ये मेरी अप्सरा अभी तो अंदर है, अभी आंखों से दूर है, अभी मेरे को काम करना है, लाइक दैट। और साथ ही अपने आपको ना टाइमलाइन भी देनी चाहिए, एक टारगेट भी देना चाहिए। जैसे इवन इन जपा यू शुड गिव योरसेल्फ 2 आवर्स। अगर आप जपा के में हम टाइम बाउंड नहीं करेंगे ना इसको, अब तो कई लोग पूरा दिन जपा करते रहते हैं, अरे राम 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 हे राम राम हे राम राम। ओ भाई रात की 11 बजने 16 वाली नहीं हुई इसकी अभी, कितनी हुई? कहते 14 हुई। कहते 14 भाई, रात की 11 बजने, वो माला ही नहीं पूरी हो रही थी। तो हर चीज को हमें एक टाइम के फ्रेम में बांध करके करने का प्रयास करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये सब फॉलो करेंगे ना, निश्चित रूप से आप में कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। बेसिकली कंसिस्टेंसी क्या है ना, ये सत्वगुण की क्वालिटी है। रजोगुण में या तमोगुण में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। तमोगुण में लोग सो जाते हैं इसलिए काम नहीं कर पाते, रजोगुण में कुछ करने क्या निकले थे, कर कुछ और जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं रजोगुण। तो रजोगुण तमोगुण जो है ये विलन है कंसिस्टेंसी के। सत्वगुण में देयर इज कंसिस्टेंसी। जितना आप सात्विक होंगे आपके एटीट्यूड में, आपके स्वभाव में, उतना ज्यादा आप कंसिस्टेंट हो पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you so much. So there are a few questions around day-to-day practice of spiritual life, like what is okay, what is not okay. Just go through the. One question is, can we eat food in restaurants outside sometimes? And if yes, then how do we offer it to Krishna by eating? ओके, वैसे अगर आप इंद्र तृप्ति के लिए जा रहे हैं, मैं तो रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। आप बल्कि गोविंदा में जाएं, राधा गोपीनाथ टेम्पल के। क्या गोविंदा है भाई, क्या बात है, क्या डोसा मिलता है वहां पर, क्या बर्गर मिलता है वहां पर, ऑसम। तो अगर आपको इंद्र तृप्ति करनी भी है तो भगवान ने इंद्र तृप्ति करने के लिए आपको गोविंदा रेस्टोरेंट दिए हुए हैं। तो वैसे बाहर के रेस्टोरेंट में जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है जी। बाकी मैं कहूँगा यूट्यूब में बहुत अच्छे वीडियोज हैं, बढ़िया बढ़िया टेस्टी इंद्र तृप्ति वाले चीजें बनाने के। तो कभी घर पे बनाइए, हस्बैंड वाइफ साथ में, कहते चलो भगवान आज कुछ करते हैं किचन के अंदर धूम धड़ाका, और वहां पर कुछ बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाएं, एंड हैव सेंस ग्रेटिफिकेशन एट होम इटसेल्फ, व्हाई नॉट। तो आपको रेस्टोरेंट में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जाने का अगर मन भी हो कि चलो ठीक है भाई, वंस इन अ फोर्टनाइट आज मेरी वाइफ को मैं चकला बेलन से दूर रखूंगा, चल भगवान चले गोविंदा हाल आ रहे, तो आप गोविंदा चलिए, वहां पर आप पा सकते हैं। हमारे द्वारका गोविंदा भी बहुत अच्छा है, राधा गोपीनाथ टेम्पल गोविंदा भी रियली ऑसम। सो इसलिए सम ऑफ द गोविंदास आर रियली ट्रू गुड। तो इसलिए बाहर के रेस्टोरेंट्स को मैं रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज़ देयर आर कर्मी पीपल, किस भाव से बनाते हैं वी डू नॉट नो। इसीलिए बाहर का नहीं खाएं, ही बेस्ट है। बाकी ऑफ कोर्स आपको बहुत ही तलब लगी हुई है तो फिर जैन रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ जा सकते हैं। यू वांट टू टेक समथिंग, फिर वो मेंटली ऑफर करना श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, दैट्स नॉट रियली स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति। लेकिन कभी कभी परिवार के साथ अगर आपको जाना ही पड़ता है, बिकॉज घर परिवार में सब भक्त नहीं है, कभी जाना पड़ता है, देन यू कैन गो फॉर सम काइंड ऑफ मतलब जैन काइंड ऑफ फूड, वो ले सकते हैं ऑफर करके। ओके ये जैन पिज्जा मैं पा रहा हूँ, भगवान स्टैंडर्ड तो नहीं है लेकिन आज मुझे पाना पड़ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम राम। तो कभी कभी परिवार के साथ चल जाता है। लेकिन अगर आपके घर परिवार में सब भक्त हैं, फिर हम सोचे कि हम वहाँ थोड़ा घूम फिर के आए, कुछ कराएं, कुछ
तो वो तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आपको करना चाहे वो उसकी इच्छा है उस व्यक्ति की। वैसे घर में साथ कुकिंग करना हस्बैंड वाइफ का, दैट्स रियली इट्स लाइक अ पिकनिक एक्चुअली, इट्स लाइक अ पिकनिक। तो घर में आप सामान लेकर के आए एंड यू एक्सपेरिमेंट कि चल तू सब्जी काट, मैं ये करता हूँ, फिर तू ये कर, मैं वो करता हूँ, हाँ दोनों मिलकर के कुकिंग करें भगवान के लिए, एंड इट्स लाइक अ पिकनिक एक्चुअली। इससे रिश्ता भी अच्छा होता है और आपकी उसका एंजॉय जितनी होती है व्हेन यू टेस्ट सम नाइस डिलीशियस फूड। सो ये करें तो ये बहुत ही अच्छा। और YouTube पे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं, आई हैव सीन सम ऑफ द वीडियोस व्हेन आई जस्ट रिसेंटली आई सॉ वेजिटेरियन ऑमलेट, बेसन का बनता है वो, और उसमें कुछ चीजें को डाली जाती है उसमें, वेजिटेरियन ऑमलेट। आई वाज टू एक्साइटेड एक्चुअली, अरे वाह वेजिटेरियन ऑमलेट, बहुत टाइम हो गया ऑमलेट खाए हुए। और उसमें बोल ही रहा था कि इसका स्वाद जो है 89-90% इज लाइक ओरिजिनल ऑमलेट। मैं कहा वाह क्या बात है, ये तो लेजिटिमेट इंद्र तृप्ति है, तो ओह सो गुड। सो तो इस तरह की चीजें घर पे बनाए तो बहुत, दैट इज बेस्ट। या Thank you so much, bro. There's a question around chocolate. Some हाँ temples encourage eating chocolate and offer, some temples don't. हाँ So हाँ what is the या offer? एक्चुअली आई बट इसमें हम यस या नो नहीं कर सकते। रीजन भी क्या है कि कुछ जो चॉकलेट्स हैं दे आर जस्ट मेड ऑफ मिल्क, और उसके अंदर कुछ और चीजें होती हैं, जैसे मिल्क चॉकलेट्स हैं, मिल्की बार, गिव मी द पावर। अब मिल्की बार जैसे कुछ सिंपल चॉकलेट्स हैं, दे आर नाइस, मुझे पता नहीं उसके और डिटेल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, पर ना कुछ जो चॉकलेट्स हैं उनके अंदर रम भी होती है, जैसे कुछ बाहर की चॉकलेट्स हैं, हर्शीज, स्निकर्स, सो उसमें कभी कभी हल्की सी रम भी मिली होती है, जस्ट उसके अंदर थोड़ा सा अच्छा फील हो। आई नो इंडिया में करते हो तो शायद ऐसा ना करते हो, आई एम नॉट वेरी श्योर। साथ ही मैंने एक वीडियो देखा था ऑफ वन ऑफ द लेडी हु इज वर्किंग इन दीस ऑर्गेनाइजेशंस, वो होता है कॉकरोचेस दे गेट लॉट ऑफ, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कोको बीन्स। अब ये चोको बीन्स जो होते हैं इनके प्रति ना अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए जब इनकी फसल कटाई होती है तो उसमें ना कॉकरोच भी थोड़े से कटते हैं, तो इसलिए आप जो चॉकलेट खा रहे हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर 1-8% मतलब कॉकरोच भी है उसके अंदर, मतलब उसका शरीर का मलिदा उसके अंदर मिला हुआ है उसके अंदर। तो अगर आप चॉकलेट विद कॉकरोच का मलिदा खाने के लिए तैयार हैं, देन ऑल द बेस्ट। तो इसलिए ये ना केस टू केस है कि कौन सी चॉकलेट हम खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते। मैंने रिसर्च नहीं की इसके अंदर, अगर आपको लगे कोई शुद्ध सोर्स से आई हुई चॉकलेट है अगर आप पाना चाहते हैं, सो यू कैन हैव। वैसे मैंने देखा दिस, ये जो कैरब आया, कैरब इज ऑलमोस्ट लाइक अ चॉकलेट, टेस्ट वाइज इज वेरी गुड, तो वो लेना चाहें जिससे। बाकी ऑफ कोर्स अगर आपकी कम्युनिटी में कोई डिवोटी माता जी हैं, शी मेक्स नाइस चॉकलेट्स, तो वो भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ चॉकलेट बनाने वाली माता जी हैं, ईस्ट दिल्ली में रहती हैं, she makes wonderful chocolates actually, और प्योर इंग्रेडिएंट्स होती हैं। so every 6 months she gives me one बड़ा वाला पोटली कि अमोघ लीला पू आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं चॉकलेट खा करके। तो अगर आपके भी राधा गोपीनाथ टेम्पल में अगर कोई ऐसा हो, सो वेरी नाइस, नहीं हो तो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। Thank you so much, bro. So around like products like clothes which can cause violence, like silk and leather, is it disallowed? या तो लेदर में, ऑफ कोर्स लेदर में तो खैर निरी वायलेंस ही होती है, वो तो मतलब वाकई में जानवर मारा जाता है, उसकी अंतड़ियां निकाली जाती हैं, फिर ये स्किन सुखाई जाती है। लेदर की फैक्ट्री में अगर आप जाएंगे आप रह नहीं सकते, बहुत ही बदबूदार गंदी फैक्ट्री होती है। अभी जो सिल्क है, सिल्क में ना एक अहिंसा सिल्क भी होता है ऑफ कोर्स, जैसे कि जिसमें कि जो कीड़ा है रेशम का उसको उससे अलग किया जाता है, देयर इज अ प्रोसेस, और कीड़े को जो है छोड़ दिया जाता है, और जो सिल्क है उससे अलग किया जाता है। कुछ जगह पे क्या करते हैं, सिल्क वाले कीड़ों को सीधे अपने सिल्क के साथ ही डाल देते हैं बॉयलर के अंदर, उसमें वो कीड़ा मर जाता है और जो सिल्क है वो अलग सेटल हो जाता है, और कीड़ा जो है वो अलग सेटल हो जाता है, तो फिर वो सिल्क को आपसे अलग निकाला। सो उसमें तो वॉयलेंस इन्वॉल्व होती है, तो ये देखना पड़ेगा आप जो सिल्क ले रहे हैं, इज इट कमिंग फ्रॉम अ वायलेंट सोर्स और नॉन वायलेंट सोर्स, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक फ्रॉम द नॉन वायलेंट सोर्स, अहिंसा सोर्स। Thank you, bro. And okay, there's a question around astrologers ask us to wear stones, gemstones, etc. Yeah. Is it okay to wear this, or if we are chanting, is it not necessary, and how to protect ourselves from negativity? देखिए, अगर तो मैं तो ये कहूंगा अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। अगर स्टोन पहन करके आपकी माला अच्छी होती है, अगर स्टोन पहन करके आपको सेवा अच्छी होती है, भैया आप मंदिर जाते हो, आप कुकिंग करना शुरू कर देते हो, आप बढ़िया होता है आपका हिसाब किताब, स्टोन पहन लो, स्टोन पहन लो। हम तो देखें अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वचन, क्या भक्ति में अनुकूल हो रहा है, मतलब शरीर के लिए अच्छा हो रहा है क्या? आपने पुखराज पहन लिया, गोमेद पहन लिया, नीलम पहन लिया, मोती पहन लिया, इससे आपको भक्ति में हेल्प हो रही है क्या? तो पहन लो। श्रीपाद आयंद्र को बोला करते थे, वी नीड ऑल हेल्प टू गो बैक फ्रॉम बैक टू गॉड।
मान लीजिए अगर कोई मल्टीविटामिन खा करके आपका शरीर अच्छा होता है तो खा लो। हम ये कहेंगे भाई 16 माला कर रहे हो ना, फिर काय का मल्टीविटामिन है। प्रभु देखेंगे विटामिन B12। यस, हमें कृष्ण में विश्वास होना चाहिए, रक्षित विश्वास हो। सो दैट इज हम ये सब चीजों ये लेके चलते हैं कि मेरी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है। अगर पुखराज पहन करके आपकी हेल्थ अच्छी रहती है जिससे आप सेवा कर पाते हो, प्लीज वियर पुखराज, नॉट प्रॉब्लम। लेकिन पुखराज को पहले ऑफर करें भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि सारे मणि बने किसके लिए? भगवान के लिए अल्टीमेटली, राइट? सो एज अ प्रसादी यू कैन वियर इट इन केस इट रियली हेल्प्स यू इन डिवोशन सर्विस। लेकिन अगर आप इस कंसेप्शन से पहनते हो कि कृष्ण में तो देखो इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे हेल्थ की ध्यान रखें, मेरे को ना और चीजों में कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी, कृष्णा यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, यू नो ये पुखराज इज मोर पावरफुल देन यू। इस कंसेप्शन के साथ अगर आप पुखराज पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, इत्यादि पहनते हैं, अगर स्टोन्स पहनते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आज हमें मानना चाहिए कृष्ण इज सुप्रीमली पावरफुल, और कृष्ण इज बिकॉज ही इज सुप्रीमली पावरफुल, तो सो ही हैज इन्वेस्टेड हिज पोटेंसी इवन इन स्टोन्स आल्सो। सो आई मे टेक हेल्प ऑफ सम स्टोन so that I can serve Krishna better. I can take help of some medicine so that I can serve Krishna better. अगर आप ऐसा करते हैं then it is fine. तो conception is also very important. हम किस conception से stones पहन रहे हैं? Stones having independent power other than Krishna, or they are having a reflection of Krishna's potency. तो एक नजरिया है वो, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, ये हम लेके चलते हैं जी स्टोन्स को मानते हैं। थैंक यू ब्रो। एक प्रश्न है कि भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है, पर उसके साथ साथ देवताओं की भी थोड़ी पूजा कर रहे हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सूर्यदेव का पढ़। तो देखिए, अगर आप हनुमान जी को भगवान राम का भक्त मानते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, then it is fine। मुझे याद है हम लोग भी अभी ऋषिकेश जा रहे थे, कुछ समय पहले की बात है, तो एक भक्त की ना रिंगटोन बजी थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हम सब ने गाना शुरू कर दिया, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, और इस तरह से हमने हनुमान चालीसा पहले गाई हुई है तो याद है, तो इस तरह से हमने हनुमान चालीसा पूरी कर दी, बट नॉट विद द कंसेप्शन कि ना नाउ वी हैव गॉट सेपरेट एंटिटी फ्रॉम अदर देन कृष्णा हु इज आल्सो वेरी पावरफुल, हिज नेम इज बजरंग बली, नॉट विद दिस कंसेप्शन बट इन अ वेरी जॉयफुल वे। जैसे वो रास्ते में होते हैं, थोड़ा गाना है गुनगुनाने, तो बॉलीवुड के गाने गाएंगे, तो हनुमान चालीसा गा ली हम लोगों ने मिल करके, थिंकिंग भाई हनुमान जी क्या है, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, तो इस भाव से गा लिया, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो अगर आप देवी देवताओं को ये मान के चलते हैं देवी देवता है और प्रभु के भक्त हैं, उस तरह से अगर आपने हनुमान चालीसा गा ली, नथिंग रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली ओके। Thank you, bro. And someone is saying that they have started chanting, but they are still eating onion and garlic and having tea and coffee. So, is that okay, or how to do? देखिए, अगर आप अनियन गाले अगर आप खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद से नाइंसाफी कर रहे हैं। अनियन गाले के गुंडे हैं, पूरी सब्जी के अंदर ही गुंडे हैं असल में, पूरे सब्जी पे अपना फ्लेवर डाल देते हैं, यू कैन नॉट हैव एनी अदर फ्लेवर। तो इसीलिए प्याज लहसुन को हटाइए, तो आप पालक में पालक वाला स्वाद, मटर में मटर वाला स्वाद, आलू में आलू वाला स्वाद, गोभी में गोभी वाला स्वाद ले पाएंगे। नहीं तो अगर आपको एक ही स्वाद चाहिए प्याज लहसुन वाला, तो बनाओ उसकी ग्रेवी, झोंक दो उसमें अंदर सारी सब्जियां। तो इसलिए वैरायटी लीजिए, क्या सेम स्वाद, राइट। बाकी ऑफ अनियन गार्लिक पे आई हैव गॉट एंटायर वीडियो, अमरेंद्र भू का बड़ा अच्छा वीडियो 1 घंटे का, वो भी देख सकते हैं आप, टू टेक इंस्पिरेशन। और अब तो कुक बुक्स भी आती है, बहुत अच्छी अच्छी कुक बुक्स इस्कॉन के अंदर अवेलेबल है, बिना अनियन गार्लिक के टेस्टी प्रसाद कैसे बनाए। और वैसे जो हींग होती है ना, हींग से थोड़ा फ्लेवर भी आता है, एंड हींग इज गुड फॉर डाइजेशन आल्सो, तो इसलिए हींग का इस्तेमाल करें, दैट्स आल्सो वेरी गुड। तो इसलिए प्याज लहसुन ऑफ कोर्स आई वुड नॉट रिकमेंड। बाकी और चाय लेते हैं, राइट, चाय वगैरह पी लेते हैं, है ना। चाय को ना अगर आप छोड़ने के बजाय मैं कहूंगा रिप्लेस करिए विद सम न्यू काइंड ऑफ ड्रिंक्स। देयर आर सम अदर काइंड ऑफ ड्रिंक्स आल्सो व्हिच आर वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ टी। लाइक पर्सनली आई एम स्पीकिंग, मैं चाय बनाता हूँ सिनेमन की, ये जो दालचीनी होती है, दालचीनी की बहुत अच्छी टी बनती है। सो जस्ट पुट सम दालचीनी, थोड़ा सा गुड़ का पाउडर डाला उसमें, उसको आपने उबाला, छान करके पिया, वाओ, वेरी रिफ्रेशिंग, गुड फॉर डाइजेशन, गुड फॉर हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है, और इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। कभी थका रहा मैं अभी कभी आता हूँ, एंड देन आई जस्ट थोड़ा सा डाला दालचीनी एंड थोड़ा सा गुड़ का पाउडर, नो चीनी। हिंदी चीनी भाई कभी हम कभी नहीं हो पाए, ना चीनी खाने वाली ना चीनी पॉलिटिकल वाली, तो इसलिए हिंदी चीनी भाई कभी नहीं हो पाए, तो चीनी तो बंद कर दीजिए एब्सोल्युटली, गुड़ का पाउडर इस्तेमाल करें, एंड दैट्स इट। तो बेसिकली ना चाय में कोई अमृत नहीं बचता हुआ, चाय के बाद पता है क्या आनंद वाली क्या चीज है, हम सब साथ बैठते हैं ना, वो मजे वाली बात होती है। हम सब बैठे, चलो जी चाय बन गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ जी, तो ट्रे आएगी, चाय आ गई, चाय चाय चाय, तो थोड़ा चाय इन्होंने पकड़ी है,
करके जो हम गपबाजी करते हैं ना, बेसिकली उस गपबाजी में लोगों को अच्छा लगता है। तो एक गपबाजी तो हम दालचीनी की चाय के साथ भी कर सकते हैं, इलायची की चाय के साथ भी कर सकते हैं, सम लेमन टी के साथ भी कर सकते हैं, जिंजर टी के साथ भी कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ आल्सो। तो इसीलिए चाय को रिप्लेस करें विद सम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। Thank you, bro. There are some questions around anarthas in our hearts, our bad quality, that we get angry with people, yeah, we get envious with people. या बिल्कुल पूछे तो क्या क्या कौन सी गलत क्वालिटी तंग कर दिया आपको? So one question is कि शांत स्वभाव में कैसे रहे, किसी पे गुस्सा आने के बाद भी उससे लड़ाई ना करे. And then there were a few questions around just general how to curb the anarthas in our hearts, 6 anarthas. 6 अनर्थास तो फिर पूरी सेमिनार्स है भाई, ठीक है, 6 अनर्थास में क्या बोलूंगा मैं। सो लेकिन हाँ, गुस्सा ना आए। गुस्सा 3 तरह के लोगों को आता है, जो बहुत नियंत्रण करने का पागलपन जिनको छाया हुआ है, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है जी। और दूसरा आता है जिनको हर चीज में बड़ा मजा चाहिए, मजा होना चाहिए यार, मजा 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 मजा। ऐसे लोग भी दुखी रहते हैं। इन्होंने शादी की थी किस लिए? यार मजा करेंगे यार। नौकरी की थी किस लिए? यार मजा करेंगे यार। मजे वाले लोग भी जो है दुखियारी आत्मा रहते हैं, ठीक है जी। और तीसरे हैं परफेक्शनिस्ट। हर चीज में टनाटन चाहिए। मेरी वाइफ हो एकदम टनाटन, मेरा पति हो एकदम टनाटन, मेरे बच्चे हो टनाटन, मेरी सेविंग्स हो टनाटन, मेरी सैलरी हो टनाटन, मेरी गाड़ी हो टनाटन, पड़ोस की बीवी हो टनाटन, सब टनाटन होना चाहिए। सर सबको टनाटन कैसे हो जाएगा भैया? ऐसे थोड़ी होता है। तो इसीलिए सबको जो टनाटन चाह रहे होते हैं, ऐसे लोग भी जो है दुखियारी आत्मा रहते हैं। सो परफेक्शनिस्ट, कंट्रोल फ्रीक्स, एंजॉयमेंट मैनियाक्स, इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ये 3 एटीट्यूड्स आप छोड़िए, आप देखेंगे आपके गुस्से में एकदम स्टीप फॉल आएगा। लेकिन ये करने की ताकत कहां से आएगी? बाय अटेंटिव चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। आप ये करेंगे, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा आपके गुस्से के अंदर। बाकी होता है क्या ना, गुस्से में ना वी ऑफन रिएक्ट, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं हम, चक देना। तो एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए हमें, वी शुड लर्न टू रिस्पॉन्ड। जैसे आपने देखा होगा, जब अक्सर क्रिकेट में ना बॉलर जब अपील करता है हाउस, अंपायर सोचे यार क्या बढ़िया अपील किया बंदे ने यार, आउट तो देना बनता है, आउट है जी, क्या अपील किया छोरे ने भाई। ऐसा होता है नहीं, भले ही बॉलर बोले आउट, लेकिन अंपायर जो है विचार करता है, आउट। ऐसे ही हमारे अंदर का अहंकार, हमारा मन हो सकता है चिल्लाए, गुस्सा कर दे, चिल्ला दे, सुना दे इसको। उस वक्त हमें नहीं सोचना चाहिए वाह क्या अपील हुई है भाई, गुस्सा कर ही देते हैं। उसको थोड़ा विचार करें, नॉट आउट, गुस्सा नहीं करना। साथ में कभी आपको गुस्सा आए भी ना, अगर थोड़ा एक्शन ना थोड़ा डिले करके लेकर आइए। होता क्या, गुस्सा जब हम आया होता है उस वक्त जो मुंह से निकलता है लावा ही निकलता है, उस वक्त जो मुंह से निकलेगा वो लावा ही निकलेगा। सो टेल योरसेल्फ यस, गुस्सा हम जरूर करेंगे, आफ्टर 1 मिनट जरूर गुस्सा करें। आप गुस्से में बाद जो गुस्सा करते हैं ना, उसमें ना वो इंटेंसिटी नहीं होती। जैसे जब लॉन टेनिस खेलते हैं ना, लॉन टेनिस में पहली सर्विस जो की जाती है उसमें जान होती है, उसमें जान होती है। लेकिन अगर वो नेट से टकरा जाती है अगर बॉल, सेकंड सर्विस में वो जान नहीं रहती। उसी तरह से गुस्से में अगर आपने सेकंड सर्विस पे ले आया ना उसको, उसमें वो जान नहीं रहेगी उस गुस्से के अंदर। सो डिले द एक्शंस ऑफ एंगर। ऐसे अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू आर एंग्री डेयर नॉट स्पीक, otherwise you would give the best speech of your life you are ever going to regret। तो इसलिए उस वक्त मुंह नहीं खोलना, उस वक्त मुंह से लावा ही निकलेगा, लावा नहीं निकालना। जी गुस्सा जरूर करेंगे हम, 1-2 मिनट के बाद करते हैं, जरूर करेंगे, करेंगे जरूर, लेकिन 2 मिनट बाद गुस्सा कैसे होगा? देखिए जो किया आपने सही नहीं था, गलत है, ऐसे निकलेगा गुस्सा। अगर इमीडिएटली निकलना हो तो कैसे निकलेगा? अब देख लूंगा तेरे को मैं, तेरे जमीन में घास दूंगा, तेरे को मैं गाड़ दूंगा, तेरे को, उस वक्त ये सब निकलेगा लावा। डिले द एक्शन, डिले द एक्शन। Thank you, bro. How to manage studies and Krishna consciousness both, especially when exams are coming in? Very simple. Early morning chanting, rest of the day studying, 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 studying. सुबह सुबह जल्दी उठ करके आप जपा पूरा करिए, बाकी पूरे दिन पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं कॉलेज के समय में मैं सिर्फ सुबह जपा करता था, रेस्ट ऑफ द डे आई वुड नॉट डू जपा, सिर्फ मॉर्निंग में जपा। रेस्ट ऑफ द डे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कॉलेज में गए पढ़ाई, लाइब्रेरी में बैठे पढ़ाई, 3 घंटा पढ़ाई, 4 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।
ऐसा करके I scored 91% marks because this thing really works. You chant Hare Krishna in the morning, the rest of the day you focus on your studies. Thank you. Related question that some things that we have in our studies or syllabus are not related or somewhat offensive to the Lord, and so we don't like to study. So what should we do? Even but they come in the exams. Something you do not like to study, even though they are part of your syllabus. ऐसा क्या? Right, right. Yeah. पहले देखना पड़ेगा ये कौन सी चीजें हैं जो कि आपको पसंद नहीं है. ठीक है. अगर जो चीज आपको पसंद नहीं होती ना, पहले उनसे शुरुआत कभी नहीं करनी चाहिए. बहुत डिस्करेजमेंट मिल जाती है. अरे यार एक और पड़ेगा ये. तो ऐसी चीजें पहले पढ़िए जो कि आपको पसंद है. उसके बाद फिर वो चीजों उन सेक्शंस पे जाइए जो कि आपको पसंद नहीं है. Like that. So because now you have the enthusiasm and confidence that yes, I can understand. तो इस उत्साह के साथ जाएंगे, then you can study those sections also which are difficult to understand. Also those which are difficult things ना, जितना आप difficult चीजों को graphically पढ़ेंगे, उतना वो चीजें समझ में आती हैं. जितना चीजों को text में पढ़ेंगे, text is very boring. जितना text wise पढ़ेंगे, it is very boring. So create images, graphics, colors, flow charts, algorithms. ये बनाइए चीजों को समझने में. And then that उसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती है because now you have made graphics of the whole thing. मन को graphics अच्छे लगते हैं. जैसे आप में से कितने लोगों को ये शोले का वो सीन याद है when गब्बर सिंह is walking on the चट्टान asking अरे ओ कालिया. कितने आदमी थे. ये सीन किस किस को याद है? सबको याद होगा. लेकिन ये कब देखी थी शोले? 25 साल पहले देखी थी शोले. याद है, लेकिन आज भी याद है क्योंकि हमें ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं. मन को ग्राफिक्स पसंद है. So इसीलिए डिफिकल्ट सेक्शंस को ज्यादा ग्राफिकली समझने का प्रयास करें. Thank you, Prabhu. One question is that if someone is performing bhakti but with the motive of getting rid of material existence, not really for the love of the Lord, so is it okay? Is he doing it correctly? देखिए होता क्या है, सीधे हर कोई व्यक्ति सिर्फ कृष्ण प्रेम के लिए एस्पायर करेगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है जी. तो इसलिए इन द बिगिनिंग इवन समबडी इज एस्पायरिंग कि भाई मेरे को संसार से छुटकारा पाना है, कम से कम इस इच्छा के साथ करे तो सही, शुरुआत तो करे. लेटर ऑन ही कैन हैव हायर कॉन्शियसनेस कि मैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहा हूं, मुझे दिक्कत नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं छूटनी चाहिए. ये तो बहुत ही हाई लेवल कॉन्शियसनेस है. पर इन द बिगिनिंग अगर कोई छुटकारा ही पाना चाहता है, अरे हाँ यार, तो जैसे भाव वाला हो लेकिन कृष्ण में मत आना चाहिए. अकाम सर्व काम होगा, चाहे सकाम हो निष्काम वाला हो, anybody and everybody can come to Krishna. What is the meaning of complete surrender to Guru, and like how can we get to that stage in our life? Complete surrender to Guru का मतलब है completely उनके instructions को follow करना, irrespective of your psychophysical nature. उसको बोलते हैं complete surrender to Guru and Krishna. कहना मानना, surrender मतलब कहना मानना. सर दे दो अंडर, अपने सर के अंदर जो पड़ा हुआ है ना उसके हिसाब से मत चलो. सर दे दो अंडर, उसको बोलते हैं सर अंडर, सरेंडर. तो इसलिए कहना मानना, दैट इज सरेंडर. सिर्फ कहना मैं आज से समर्पित हूँ आपको कृष्णा, मैं आज से आपको समर्पित हूँ, ओ गुरुदेव मैं आज से आपको समर्पित, इससे थोड़ी कुछ होता है भाई. कहना मानते हो क्या? नहीं, कहना नहीं मानते. कहना तो अपनी मैं इंटेलिजेंस का मानता हूँ. सो व्हेन वी आर सर्विंग गुरु एंड कृष्णा बियॉन्ड आवर साइकोफिजिकल नेचर, जस्ट फॉर देयर प्लेजर, that is the most exalted level. ठीक है जी. Thank you, bro. How should we go deep in our sadhana practice, like reading, chanting, hearing, and be sincere and somehow like get to the next level in our sadhana? Yeah. For next level, we should associate with devotees who are in the next level. Devotees से संग हमें करना चाहिए to come to the next level. Secondly चीज है क्या, हम we are naturally promoted to the next level when we are performing well at this level. When we are sincere and we are very conscious and we are keeping the goal of Krishna Prem in our heart, then we are pulled towards the next level. Like that. Thank you, bro. How do we deal with politics in Krishna consciousness? Politics in Krishna consciousness मतलब politics मतलब कौन सी है? मंदिर के अंदर politics या देश की politics? नहीं, मंदिर के अंदर की politics. देखो मंदिर के अंदर वैसे कोई politics होती नहीं है. Politics पता है लोग किसको बोल देते हैं? मान लो किसी ने आपको कहना नहीं माना, उसको politics बोल देते हैं. That's it. मेरा कहना नहीं माना, मीटिंग हुई थी, हमने प्रपोज किया, हमारा कहना नहीं माना गया, किसी और का कहना मान लेगा. बहुत पॉलिटिक्स है भाई मंदिर के अंदर, बहुत पॉलिटिक्स चल रही है. हाँ, तो दैट फेज पॉलिटिक्स समटाइम्स इज परसीव्ड एज पॉलिटिक्स बिकॉज यू वर नॉट हर्ड, somebody else was heard. मंदिर को पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग ना भक्त बनते नहीं है.
भक्त जो actually those who are devotees of the Lord, they have such consciousness, they don't do politics actually. क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसकी थोड़ी बुराई कर देंगे, तो उसको बोल देंगे भाई तू उसका कहना मान ले, उसका कहना मत मान, थोड़ा सा सोच कर लेंगे। पॉलिटिक्स एक्चुअली होती नहीं है। मुझे एक बार एक भक्त बोला मंदिर में आकर के, हमारे स्कॉन द्वारका में, इसे अमोघ लीला प्रभु, पता है आपको मंदिर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई? हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, हरि कथाएं चल रही हैं और प्रसाद चल रहा है। He said, नहीं प्रभु जी नहीं, अंधे हो गए हो आप, अंधे, नहीं देख पा रहे आप मंदिर में क्या चल रहा है। मैंने कहा तो तुम बता दो भाई मंदिर में क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स, मंदिर में पॉलिटिक्स चल रही है। मैंने कहा मंदिर में कहीं पॉलिटिक्स नहीं चल रही, लेकिन एक जगह पॉलिटिक्स जरूर चल रही है। कहते कहाँ? मैंने कहा तेरे खोपड़े के अंदर। ये हमारे अंदर के भाव होते हैं कि पॉलिटिक्स चल रही है, फला है ढिमका है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? बेसिकली आई एम सेइंग कृष्णा इज नॉट इन कंट्रोल, फला व्यक्ति इज इन कंट्रोल, बट एक्चुअली कृष्णा इज इन कंट्रोल, दैट्स इट। तो इसलिए कृष्णा अगर आप नहीं चाहते अब ये कार्य हो, सो कृष्णा वो डू सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर कार्य नहीं होगा। हम कहेंगे पॉलिटिक्स हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, पॉलिटिक्स हो गई। इट्स नो सच थिंग एज पॉलिटिक्स। वही मंदिर में नहीं होगा, कुछ पॉलिटिक्स नहीं होती। भाई मेरे को पोस्ट पोजीशन चाहिए थी, मेरे को नहीं मिली, किसी और को मिल गई, पॉलिटिक्स है जी। हमें इतने साल हो गए मेरे को इस कॉन में, इतने साल हो गए मेरे को, पर मेरे को नहीं दिया, उस 15 साल के छोकरे को दे दिया। हाँ नहीं, पॉलिटिक्स है जी, हमने देख लिया इस्कॉन। हाँ, आपको ऐसे छिछोरे लोग मिल जाएंगे इस्कॉन के अंदर, कुछ नहीं होती पॉलिटिक्स वगैरह। कृष्णा इज इन कंट्रोल। कृष्णा जो चाहेंगे वो अवश्य होगा, कृष्ण नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। तो जो ये मानता है कृष्णा इज इन कंट्रोल, नो सच थिंग एज पॉलिटिक्स। तो इसलिए मस्त रहना चाहिए। पॉलिटिक्स अगर मान लो है भी तो कौन देखने वाला? टेंपल अथॉरिटी देखेगी ना, वो देखे पॉलिटिक्स को। हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? हमारी सोसाइटी का नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, राइट? कृष्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, यानी भावना में अमृत बने रहना चाहिए जी। अगर आपकी भावना का अमृत ही सूख गया तो इस कौन में आने का तुम्हारा पर्पस ही डिफीट हो गया। सो वी शुड लिव लाइफ इन अ वे कि हमारी भावना में अमृत हमेशा बना रहे। वी शुड डू मैनेजमेंट इन अ वे कि भावना में अमृत हमेशा बना रहे, क्योंकि इसी के लिए तो आए थे हम लोग, राइट? So there is no such thing as politics, especially in devotee circle. और मान लो अगर है भी, there are people to manage it. We should stay bindas. That's it. And most of the time, ये सिर्फ मन का फितूर होता है। मेरे एक दोस्त है, उनका ना गुरु पूजा कीर्तन था। तो गुरु पूजा कीर्तन जो है वो आ ही रहे थे माइक के पास, तो एक और भक्त आ गया, उसने हाईजैक कर लिया, बीच में आके माइक पे गाना शुरू कर दिया, श्री गुरु चरण पद्म, उसने गाना शुरू कर दिया। तो एक डिवोटी जो आया उसके पास, इस मेरे मित्र के पास, कहता प्रभु आपने कुछ गौर किया? उनका क्या गौर किया? आप आ रहे थे लेकिन आपके आने से पहले व्यक्ति ने हाईजैक करके कीर्तन करना शुरू कर दिया। ये पॉलिटिक्स है प्रभु जी, कि आपको कीर्तन नहीं गाने देना, हम गाएंगे, आप नहीं गाएंगे। और वो भक्त जो है मेरा दोस्त कहता है अच्छा इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको? और क्या नहीं तो, और क्या नहीं तो, ये दूर से भाग करके ऐसे बीच में आकर ये हाईजैक करके कैसे कीर्तन कर देना, ये पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? मेरे दोस्त ने बोला ये पॉलिटिक्स नहीं मेरी जान, इसको बचपना बोलते हैं। कोई व्यक्ति अगर ऐसे बीच में आकर कीर्तन शुरू कर रहे हैं, इट्स लाइक अ चाइल्डिश थिंग। तो कभी कभी लोग बचपने को भी पॉलिटिक्स काउंट कर लेते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज पॉलिटिक्स। भक्तों की दुनिया तो एकदम मक्खन मलाई दुनिया बाबा। थोड़ा थोड़ा कभी कभी बचकानी हरकतें लोग कर देते हैं, एंड इट इज सीन एज पॉलिटिक्स। नो, इट इज नॉट पॉलिटिक्स। Thank you so much, Prabhu. If nothing happens without Krishna's permission in our life, then what is the role of our own desires and karmas? एक्चुअली क्या है, कृष्ण की वजह से होता है सब कुछ, ऑफ कोर्स नो डाउट, लेकिन हमारी चॉइसेस है हमारे हाथ में। हमारी चॉइसेस के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमने एक बार जो चॉइस कर ली, हो यार गलत चॉइस हो गई भैया, लेकिन चॉइस के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है फिर वो हमें भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए हमारी चॉइसेस भी रहती हैं, राइट? तो बिना चॉइस, अगर हम चॉइस ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान कैसे करेंगे? भगवान हालांकि प्लान को रीओरिएंट करते रहते हैं। समझे जीपीएस के अंदर, जीपीएस में ना एक दिया होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आपको जाना है, इतना सीधा, इतना लेफ्ट, इतना राइट, ऐसे करके। आप ना उसमें जानबूझ के गलत रास्ता ले लो अगर, तो फिर क्या करता है जीपीएस? जीपीएस आपको रीओरिएंट करता है।
ताकि आप पहले आप पहुंचे 45 मिनट में, अब आप पहुंचोगे 55 मिनट में, बिकॉज इट रीओरिएंट्स। सिमिलरली भगवान भी अपने प्लान्स को रीओरिएंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइसेस। हमने सही चॉइस की, गलत चॉइस की, गलत चॉइस की, फिर भगवान बताएंगे ले बेटा अब तो आना तेरे को 1 जन्म में, अब आएगा तो 2 जन्म में, या अब लंबा समय लगेगा। सो ही ऑल्सो रीओरिएंट्स हिज प्लान्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइसेस। तो चॉइसेस भी हैं, भगवान की इच्छा भी। Thank you. How do we deal with anxiety in our lives? एंजाइटी फॉर व्हाट? That the question just said, how do we deal with anxiety? अच्छा, हाउ टू डील विद एंजाइटी। एंजाइटी वाला किस चीज की होती है? एंजाइटी होती है सफलता की, विफलता की। whether I'll be successful or I'll be failure। सफल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, और अगर विफल रहा तो लोग क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, इस सॉर्ट ऑफ रोग है ये। तो इससे एंजाइटी अक्सर फेलियर की रहती है। तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे, मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये है एंजाइटी वास्तव में। तो इसलिए या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं, बिकॉज फेलियर्स आर ग्रेट एपिसोड्स ऑफ लर्निंग। सफलताओं में लोग इतना नहीं सीखते हैं, इतना विफलताओं में सीखते हैं। तो इसीलिए हमें एंजाइटी तब नहीं रहेगी व्हेन आई हैव द लर्निंग एटीट्यूड बाय इन ऑल द इंसिडेंसेस ऑफ लाइफ। जो भी होगा लाइफ में सीखूंगा, स्पेशली फेलियर्स में तो जरूर सीखूंगा। जितने भी अच्छे टीचर्स हैं दुनिया के अंदर, दे हैव सीन फेलियर्स। तो इसीलिए लर्निंग एटीट्यूड लेकर के आए, देन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स एट ऑल। यू विल नॉट हैव एनी एंजाइटी। फिर क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, सीखेंगे, दैट्स इट। थोड़े झंडे कम गाड़ेंगे, दैट्स इट। इट्स ओके, it's okay। So anxiety goes down when we have the learning attitude in all the episodes of life। Thank you. अगर कोई हमें हमारी पुरानी बातें करके हर्ट करते रहे बार बार, जो हाँ, पहले की हुई कुछ चीजें, हाँ। तो उससे कैसे डील करना चाहिए? देखिए लोग पता है हर्ट कब करते हैं या किनकी टांग खींचते हैं। जो लोग अपनी टांग बढ़िया खिंचवाते हैं ना, उसको यार टांग खींच के इतना मजा आता है यार। अभी देख, तू देखेगा, अभी देख देख, अभी इसमें इसके सुतली में आग लगाता हूँ, देख क्या बम फटेगा, देख अभी देख तमाशा। ए सुन, ए क्या रे, हमने सुना यार तू तो, और फिर उसके बाद टांग खींचनी शुरू होती है। तो जो लोग बढ़िया टांग खिंचाते हैं ना, सारे उसकी टांग खींचते हैं। हमारे आश्रम में ऐसा होता है। मुझे याद है, मैं जब ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में था, हमारे एक ब्रह्मचारी था, इतना सेंसिटिव, इतनी बढ़िया, मतलब तिलमिलाता था वो, सब टांग खींचते थे उसकी। उस बेचारे ने, हुआ क्या था, जिम गया था वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए। जिम गया, वहां उसको थोड़ा सा ज्यादा उठा, झटके से उठा लिया, तो उसको हर्निया हो गया। अब हर्निया हो गया तो उसका ऑपरेशन हुआ। तो हमारे ब्रह्मचारी लोग हंसी मजाक में बोल रहे थे, कहता है भैया तुम ऑपरेशन कराए लाए, हाँ गवर्नमेंट ने बोला जो नसबंदी कराएगा उसको हम नैनो कार देंगे। तो नैनो कार आ गई, मैंने बोला ऑपरेशन नहीं कराया, मैंने हर्निया का ऑपरेशन करा। व्हाई? बिकॉज क्योंकि वो बोलता था, इससे उसकी टांग खींचते थे लोग। तो कभी कभी लोग जो आपकी टांग खींच रहे होते हैं ना, तो टांग अपनी दोनों टांगे पकड़ाने, कहता है एक टांग क्यों, ये लो, ये भी लो और ये भी लो, यस। उसके बाद कोई टांग नहीं खींचता जी। ऐसे एक समय टीचर थी, वो स्कूल में आई, और स्कूल में आई तो ना बच्चों ने डिसाइड किया, जैसे ही टीचर मैडम अंदर घुसेंगी ना और ब्लैक बोर्ड की ओर बड़े मुड़ेंगी, सारे एक साथ अपना बैग उठाएंगी और नीचे डाल देंगे, धम करके आवाज होगी, डर जाएगी वो। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। तो ना टीचर ऐसे कमरे में घुसी, क्लासरूम में घुसी, सब उठे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर जैसे ही वो मुड़ी, सबने अपने बैग उठाए, गिराए, दौड़ करके आवाज हुई, डर गई। टीचर ने क्या किया, अपना बैग लिया, उसने भी डाल के नीचे फेंका था। तो टीचर ने बोला, अरे तुमने पहले बताया होता तो मैं भी तुम्हारे साथ कर लेती। If you would have told me earlier, I would have joined you। अब ये लोग चुप थे, अब टीचर हंस रही थी। इसके बाद से कभी टीचर की टांग खींचने की इन्होंने हिम्मत नहीं की। सो दैट इज, जब हम अपनी टांग बढ़िया से खिंचा रहे होते हैं ना, फिर लोग बढ़िया से अच्छे टांग खींचते हैं। तो जो लोग चिढ़ जाएंगे, तिलमिला जाएंगे, क्या क्या कुकू कर देंगे। तो अगर हमें कोई पुरानी चीजों को याद करा करा कर हमारी टांग खींचना है, कहता है ले एक टांग क्या, तो दोनों टांग लिए हमारी, ऐसे। अरे तुम तो मूर्ख हो, मूर्ख। तो उसको बोला, अरे मूर्ख ही नहीं है हम तो, हाँ मूर्ख है, तुमको हमारे बारे में इतना नहीं पता यार, तुम इतना अपडेटेड नहीं हो हमारे बारे में, है? उसके बाद से कोई ना टांग खींचेगा हमारी। यस। तो इसीलिए कोई पुरानी बातों में आप चिढ़ा रहा है, क्योंकि आप चिढ़ रहे हो, इसलिए आपको चिढ़ा रहा है। That's it।
ठीक है जी, और कोई सवाल? यस, नेक्स्ट सवाल। Okay, bro. So there are a few questions around हाँ like हाँ the rituals of devotional life, why we do things in a particular way. हाँ हाँ। I'll just go through. Like one question is around why do we offer handkerchief or cloth while doing आरती to the deity? एक्चुअली उससे पहले क्या आता है? उसके पहले आता है शंख। शंख में होता है पानी। पानी से हमने भगवान को नहलाया है। अभी नहलाने के बाद टॉवल से नहीं पोंछते क्या? बस वो पोंछना ही है वो। भाई बेसिकली आरती का मतलब क्या होता है? आरती का मतलब ये होता है कि ना आपके ऊपर जो भी इनऑस्पिशियस चीजें थी, भाई आरती पीछे कंसेप्शन क्या है? राधा कृष्ण जो है अभी अभी आए हैं उनकी, बिकॉज दे वर इन रास लीला, तो अभी भी आए, तो रात का समय था। रात का समय था, हो सकता है कोई भूत चुड़ैल वगैरह चिपके हो उनको, तो आरती उतारी जाती है उनकी, सो दैट ऑल दीज इनऑस्पिशियस एलिमेंट्स दे गो। हालांकि भगवान को कोई भूत प्रेत नहीं चिपकते, इट इज जस्ट वे ऑफ थिंकिंग ना, नजर उतारो जी, नजर उतारो जी हमारे ठाकुर जी, वारे जाऊं वारे जाऊं। तो वारे जाऊं करने का तरीका क्या है? ये अगरबत्ती, अरे हमारी जान को नजर ना लगे जी, तो इसलिए दीप वगैरह किया जाता है। तो धूप दीप करने के बाद कहते भाई इनको फ्रेश करो, थके आ रहे आए हैं, लाओ जी शंख लाओ। शंख से जो है वैसे उनको नहलाते हैं। ये नहलाया हमने कृष्ण को, ये हमने नहलाया राधा रानी को। हाँ, नहला दिया तो गीले गीले हैं ये, गीले गीले हैं, तो फिर इनको सुखाना भी, फिर उसका रुमाल आता है, फिर रुमाल से हाँ उनको पूछा जा रहा है। तो ये फिर रुमाल आता है उसका। अब ये करने के बाद फिर क्या है, नाउ वी हैव टू मेक देम मोर फ्रेश, उनको फ्रेशनेस का एहसास देना है। तो उसके लिए क्या, फूलों की खुशबू, तो इसलिए फिर फूल आते हैं, फिर फूलों से उनकी आरती की जाती है ना, सब फ्रेग्रेंस हो, यू नो, फीलिंग सो फ्रेश। जैसे ना ये लोग जो होते हैं टॉवल में ऐसे बांध बूंद करके आते हैं, आसपास उनकी जैस्मिन ये वो फूल वूल लगे होते हैं, और फिर वो उन्हें लगाए होते हैं। तो ये भगवान को फूलों की खुशबू से रिफ्रेशमेंट दी जाती है। तो इसलिए ये किया जाता है, तो उसके पीछे फीलिंग है नहलाना, फिर टॉवल से भगवान को साफ करना। Thank you, bro. What is the reason for 108 beads in a round? In one round? 108 का क्या होता है? 1 और 8 का कोई भी कॉम्बिनेशन इज वेरी ऑस्पिशियस। रीजन बीइंग 1 इज शक्तिमान एंड 8 इज शक्ति। भगवान की 8 मुख्य शक्तियां हैं बेसिकली, इसमें क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, कृपा शक्ति है, सत्य संकल्प शक्ति है, लीला शक्ति है। ऐसी भगवान की शक्तियां हैं, 8 शक्तियां हैं। तो इसलिए क्योंकि ये जो 8 शक्तियां हैं, 8 एंड 1 इज शक्तिमान, सो 1 और 8 का कोई भी कॉम्बिनेशन इज वेरी ऑस्पिशियस। 1 8 18, 18 औक्षणी सेना, 18 दिन में महाभारत का होना, 18,000 श्लोक, 18 108 अगेन इज वेरी ऑस्पिशियस। 1008, 1,08,000। तो 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है ये शुभ माना जाता है, बिकॉज 1 का मतलब है शक्तिमान, 8 का मतलब है शक्तियां। तो इसीलिए 1008 बाबा पागल वाले कौन झड़ूदा कलान से कैसे कैसे हुआ जी, कहां से निकाला 1008? 1008, 1,08,000 वाले भी हैं। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन शुभ है इसीलिए। Thank you, bro. Is it mandatory to attend sessions by local counselors in our community, or is it okay if we can continue to listen from various speakers and do courses from elsewhere? देखिए लोकल जो लीडर्स है ना, उनका महत्व हमेशा रहेगा ही रहेगा। हम देखिए, हम बाकियों से भले सुने, लेकिन ना हमें हमेशा हमारे जो लोकल डिवोटीज हैं उनके साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए। बाहर उसे देखो कुछ बहुत अच्छे टैलेंटेड डिवोटीज, जैसे अमरेंद्र प्रभु हैं। हमारे मंदिर में सब डिवोटीज अमरेंद्र प्रभु सकते हैं। हमारे मंदिर में हमारे ब्रह्मचारी से राधानाथ महाराज के सारे फैन हैं। कई डिवोटीज हैं वो राधा गोविंद महाराज के सप्ताह उन्होंने चार्ट लिए, उन्होंने दे धनादन दे धनादन। लेकिन फिर भी ना लोकल डिवोटीज का महत्व हमेशा बना रहेगा। वी शुड नॉट थिंक ना हम तो फला फला सन्यासी का सुन लेते हैं जी यूट्यूब में, ये लोकल सेंटर के क्या टपोरी प्रीचर, ये क्या बताएंगे हमको। ये एटीट्यूड वाले ना अकेले रह जाते हैं अल्टीमेटली। हमारे लिए ना ये भक्तों की कम्युनिटी बहुत जरूरी है, हमारा उठना बैठना खाना पीना, ये परिवार है हमारा। तो ऑनलाइन से हम वी कैन टेक सम एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन हियरिंग फ्रॉम सम ग्रेट डिवोटीज, नो डाउट, लेकिन लोकल डिवोटीज से भी हमको जरूर सुनना चाहिए। तो इसलिए आप एक तो पर्टिकुलर फिक्स रखिए कि हफ्ते में एक दिन कम से कम एक दिन हमें आपके लोकल टेंपल में जाकर मंगल आरती अटेंड करना, जपा करना, गुरु पूजा अटेंड करना, भागवतम सुनना और प्रसाद पाना हफ्ते में एक दिन आपके लोकल टेंपल में करना ही चाहिए। ठीक है जी। तो इससे बाहर के जो स्पीकर्स आते हैं दे गिव टोकन रिलीफ, लेकिन एक्चुअली जो लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ जो देते हैं वो हमारे लोकल गार्जियंस ही हैं। तो इसके लिए कभी ना सोचें कि हमारे लोकल गार्जियंस दे आर नॉट सो टैलेंटेड, कभी नहीं। और स्पेशली राधा गोपीनाथ टेंपल में तो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो इतने दिग्गज डिवोटीज हैं राधा गोपीनाथ टेंपल में चौपाटी में, ओ वाओ,
सो पूरी दुनिया के लिए पूना एंड चौपाटी, बोथ ऑफ देम आर एग्जाम्पलरी एक्चुअली। पर यहाँ अगर किसी और सेंटर से भी अगर कोई कनेक्टेड है, उसको अपने लोकल सेंटर के प्रति लॉयल्टी 100% रखनी चाहिए। इसके अलावा बाकी उससे इंस्पिरेशन भी ले सकता है। Thank you so much, bro. Another like practical question, that someone said that we cannot invest in the stock market if we are practicing Krishna consciousness. Is this true? देखिए होता क्या है, स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में ना जहां पर कि रिटर्न्स आने का आपको चांसेस रहते हैं, मतलब आएंगे नहीं आएंगे, चांसेस हैं भाई, चांसेस हैं, पैसा जा भी सकता है भाई। देखो ऐसी जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो जुए में आएगा। स्टॉक मार्केट में ना कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, मतलब कि वहां रिटर्न्स आते हैं, थोड़े कम आते हैं लेकिन अच्छे रिटर्न्स आते हैं। जहां पर आपके रिटर्न्स कंफर्म्ड हैं, दैट्स मोर ऑफ लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ही है वो। जैसे मान लो कुछ बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं, जैसे रिलायंस जैसे कुछ रिलायंस इंडस्ट्री जैसे कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं, तो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे देन रिटर्न्स आते ही हैं। इसलिए मैं कहूंगा आनंद वृंदावन प्रभु से आप कांटेक्ट करें। प्रभु जी एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज के मामले में वो उसका डीएनए तक जानते हैं अच्छे से। तो ऐसे तो स्टॉक एक्सचेंज में कहां पर वो जुआ है कहां पर नहीं है, प्रभु जी कैन रियली टेल। सो इसीलिए सब चीजें जो है जुए में नहीं आती स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इन केस दे आर सेफ इन्वेस्टमेंट्स एंड दे आर रिटर्न्स मे बी थोड़ा लेस परसेंटेज में, यू कैन इन्वेस्ट। तो डिटेल्स के लिए ऑफकोर्स यू कैन कांटेक्ट आनंद वृंदावन प्रभु जी। Thank you so much. इसलिए कई सारे गृहस्थ है ना, दे वांट टाइमली रिटायरमेंट। कहते कब तक वही हम 60 साल तक घिसेंगे अपने आप को। अरे भाई थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, अच्छे रिटर्न्स लेकर के आओ, टाइमली रिटायरमेंट लो, वानप्रस्थ लाइफ में जाओ, भक्ति में घुसो, दे दनादन अच्छे से। इस जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी है हमें ना। सो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में जो है वहां पर इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है, बट विद सेफ रिटर्न्स, नो रिस्क इन्वॉल्व। Thank you, bro. There are many questions, bro. So please let us know till when. बोलिए क्या है। Um, okay, so there is one question around Gaur Nitai, that even though we have understand the Lord as Radha Krishna, but it's difficult to put faith or get bhava about Gaur Nitai. So how should we go about doing that? मैं समझा नहीं, मतलब डाउट अबाउट हूम? About Gaur Nitai, like how do we understand Krishna as like Lord Chaitanya Mahaprabhu? Sometimes it's difficult to put faith or get like an attachment to Gaur Nitai. उसके लिए मैं 100% रेकमेंड करूंगा हियर चैतन्य लीला सीरीज बाय हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। मैंने महाराज की पूरी सीरीज सुनी हुई है 2 बार, और मेरा फर्म फेथ जो हुआ चैतन्य महाप्रभु में, इट वाज बाय हियरिंग दैट सीरीज। इट इज 40 लेक्चर सीरीज बाय हिज होलीनेस राधानाथ महाराज। इट इज मस्ट फॉर ऑल इस्कॉन डिवोटीज। आपको ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धा आ जाएगी उसके अंदर, इतना डिटेल में, इतनी खूबसूरती के साथ। आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने चैतन्य लीला को इतने सुंदर तरीके से इतने पूरा कवर टू कवर किया। महाराज ने उसमें चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, तीनों को कवर किया महाराज ने उसके अंदर। तो इसलिए आप वो सुनिए, वो सीरीज सुनिए, आपका प्रगाढ़ श्रद्धा आ जाएगी महाप्रभु के अंदर। मतलब यू विल बिकम मैड, यार मैं इतने समय से क्यों नहीं सुना इनको। आई हैव हर्ड देम 2 टाइम्स, और मुझे आज भी अगर समय मिलेगा अगर कभी, आई वुड हियर दैट 3rd टाइम। सच अ नेक्टर। महाराज आपको लीला में ले जाते हैं, महाराज के पास इतनी शक्ति है, महाराज आपको लीलाओं में ले जाते हैं। यू कैन परसीव लीला डायरेक्टली कि हाँ महाप्रभु ये बोल रहे हैं, शशि माता ये बोल रही है, दैट सीन विल हैपन इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ऐसा महाराज की पवित्रता है इतनी ज्यादा। तो इसलिए प्लीज डू हियर चैतन्य लीला सीरीज, 40 लेक्चर सीरीज इज देयर ऑफ बाय श्री राधानाथ महाराज। ये इस्कॉन डिजायर ट्री पे अवेलेबल है, डाउनलोड करें तुरंत और श्रवण करें इसका। ये ऐसा खजाना है, अद्भुत खजाना है। और पूरे इस्कॉन के अंदर चैतन्य लीला पे जो महारत राधानाथ महाराज की हैं, वो शायद ही किसी और की होगी। दिस इज माय ओन पर्सनल ओपिनियन। वाओ, ही इज सो डीप इन चैतन्य लीला, इट्स ऑसम। इन एवरी मौसम ही इज ऑसम। Thank you, bro. How do we offer prayers to Lord Krishna? देखिए प्रेयर्स 2 तरह की होती हैं। एक होती है आपकी खुद की पर्सनल प्रेयर्स, जैसे आप में कन्फेशंस भी हो सकते हैं, आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं, आपने क्या क्या गलतियां की हैं, आप कुछ याचना कर रहे हैं, इन योर ओन वर्ड्स आल्सो यू कैन ऑफर प्रेयर्स। साथ ही कुछ और वैष्णव सॉन्ग्स भी हैं, वैष्णव सॉन्ग्स आर एक्सीलेंट प्रेयर्स, तो वो भी प्रार्थना कर सकते हैं आप भगवान श्री कृष्ण से। फॉर एग्जांपल यू आर स्ट्रगलिंग विद सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो कृष्ण से आप प्रार्थना करिए, विषय जे प्रीति बे आचाए आमा से मात प्रीति हौका चरणे तुमा। जितनी इंद्रियों से मेरी प्रीति है ना मेरे प्रभु, ओ कृष्णा, इतनी प्रीति मेरी आपसे हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। जितना मेरा स्वाभाविक आकर्षण सुंदर स्त्रियों के प्रति है,
उतना मेरा स्वाभाविक आकर्षण आपसे हो जाए. I want same spontaneous attraction for you as I have same spontaneous attraction for the beautiful girls of this world. Oh Krishna, please listen to my prayer. So इस तरह से कुछ आचार्यों ने जो प्रेयर्स दी हुई हैं वही बोल सकते हैं, और आप दिल के भी जो उद्गार हैं उनको भी प्रस्तुत कर सकते हैं भगवान के प्रति, both ways. Thank you, bro. There's a question: while doing services like deity worship, we get distracted by other thoughts and mind keeps going in other direction. How to stay focused? हाँ, डीटी वर्षन होता है क्या है, डीटी वर्षन में एक बार अगर आपका हाथ बैठ गया 4 2 3 7 4 2 3 7, तो फिर ना व्यक्ति क्या होता है, वो मैकेनिकल हो जाता है, उसमें सारा हिसाब होता है, कहता है ठीक है वो चरणों पे 4 बार, वक्षस्थल पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, 7 बार ऐसे घुमाना है, तो बंदा फिर उसमें तो वो फिर एक टेम्पलेट बन जाती है बॉडी की. दैट्स इट. तो इसलिए साथ साथ में क्या करना चाहिए, हमें साथ साथ में मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए. यू कैन रिसाइट सम ऑफ द श्लोकास व्हिच आर योर फेवरेट श्लोकास, सो उनको भी जो है आप मन में रिसाइट कर सकते हैं, और उसको आप मटर कर सकते हैं, हल्का सा विस्पर कर सकते हैं, बोल सकते हैं उसको. उससे फिर क्या होता है, आप में वो फीलिंग्स बनी रहती हैं. ऐसे फॉर एग्जांपल आप अगर कृष्ण कर रहे हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत नमोस्तुते. सो इस तरह को कुछ ना कुछ गुणगान करते हुए करें, तो उससे फिर आपका मैकेनिकल नहीं होगा. मैंने देखा है वो पुजारी जो गुणगान नहीं कर रहे होते भगवान का डीटी वर्शिप, देन दे गेट डिस्ट्रैक्टेड. ये बस हाथ सेट हो गया 4 2 3 7 4 2 3 7 and becomes mechanical. Thank you, bro. There are some questions around parenting. One is how to, like in general, how to involve kids in Krishna consciousness and keep them away from the distractions of phone, etc. And one question is more specific, that sometimes the children of devotees start rebelling and going away from Krishna. So how to like take care of them? Okay, देखिए बच्चों के अगर रिबेलियस हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो रिबेलियस तब हो रहे होते हैं जब हम ना माता पिता जब भक्तों अपने बच्चों पे भक्ति इतनी थोप रहे होते हैं कि उनके ना बचपने का गला घोट रहे होते हैं. वो ना बच्चे हैं, वो मूवी देखना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स से मेरे को मूवी देखनी है, सब देखते हैं, सारे बच्चे देखते हैं. तो माता पिता भक्त हैं, वो अपने बच्चों को कहेंगे नेटफ्लिक्स में मूवी देखनी है, भक्त बनो तुम भक्त, कम भक्त, भक्त बनो तुम भक्त. काश मेरे माता पिता भक्त नहीं होते, कितना अच्छा होता ना, मैं भी देख पाता यार नेटफ्लिक्स पे कुछ. एक बार बड़ा हो जाऊंगा ना, ये भक्ति के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, जी भर के पिक्चर देखूंगा मैं, उसके अंदर फिर ये भड़ास इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है. तो माता पिता को चाहिए कि ना बच्चे को इंस्पायर करें भक्ति के लिए, भक्ति के जो डूज है ना उस पर फोकस कराएं बच्चे को, कि बेटा चैंटिंग करनी है आपको, 4 माला वो किया आपने, अब मम्मा मैंने सुबह कर ली थी, अब मूवी देख लूं मम्मा, जा बेटा देख, फुटबॉल खेलने जाऊं, जा बेटा जा, बैडमिंटन खेलने जाऊं, जा बेटा जा, जाने देना चाहिए. हम कोई बच्चों की बचपने का गला घोट देते हैं भक्ति के नाम पे, कि प्रभु जी हम तो 40 साल की उम्र में आए, हमारे बच्चे को बचपन से हमको बनाएंगे शुद्ध भक्त बनाएंगे. क्यों? मतलब 100 चूहे खाने के बाद फिर हज को चले, बच्चे को एक भी चूहा नहीं खाने दोगे, ऐसा कैसे जी? तो उसे 2-4 चूहे उनको भी खाने दो, ठीक है. अगर वो मूवी देखना चाहते हैं, साफ सुथरी मूवी देखें, वल्गर मूवी ना देखें, कोई साफ सुथरी को मूवी देखनी है उन्होंने, कोई सस्पेंस मूवी, कोई थ्रिलर मूवी, एक आध कोई हॉरर मूवी देख ले, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन बच्चों के बचपने का गला नहीं घोटना चाहिए, ठीक है. उनको खेलने कूदने दें, सब बच्चे खेलते कूदते हैं, उनको भी खेलने कूदने दें. बच्चा थोड़ा टपोरी जैसे बाल बनाना चाहता है, बना ले, ये भी अपने शौक पूरे कर ले. और उसको किसी लड़की से प्यार हो गया, कहते कर ले, एक बार तू भी जूते खा ले लड़की से, तेरा मन अपने आप प्रभु में आ ही जाएगा. बनाती कितनी गर्लफ्रेंड है बेटा, अभी कहता माँ अभी दो है मेरी गर्लफ्रेंड, ठीक है, तीसरी बार बना बेटा, जल्दी जूते खाने का मौका मिलेगा तेरे को, बना बेटा जल्दी बना ले बेटा. तो जितना उसको बोलते हैं अफोर्डेबल डैमेज करने देना चाहिए. प्रभुपाद जी समय बच्चा ना, उनका बेटा था, वो चलते पंखे में हाथ डाले, प्रभुपाद जी उसको रोके, फिर चलते पंखे में हाथ डाले, प्रभुपाद जी उसको रोके, फिर जाए वो, प्रभुपाद ने कहा कि नीचे से ना पंखा बंद कर दिया और कहा तू हाथ डाल. अब पंखा अब ना धीरे थोड़ा धीरे हो गया था, उसने डाला, ठप लगा, प्रभुपाद ने कहा डाल और डालना है, डालो और डालो बेटा, नहीं हो गया. इस तरह से बच्चों को हमें एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे थोड़े सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर लें, लेकिन इतना ना कर लें कि डैमेज ही हो जाए. अफोर्डेबल डैमेज इज अलाउड, अफोर्डेबल डैमेज. तो बच्चों को साथ वो रखना पड़ेगा. जैसे सर्दी के दिन है,
I'm just giving example of affordable damage. सर्दी के दिनों में आइसक्रीम खाना is affordable damage. पापा आइसक्रीम खाए हुआ सर्दी को, लेट्स हैव कसाटा, ऐसे तेरी माँ को मत बताइए, जो चुपचाप कसाटा खा के। अब ये डैमेज है भैया, अफोर्डेबल है, इससे बच्चों के साथ दोस्ती बनती है, बच्चों के साथ रिश्ता बनता है, थोड़ा सा मशकरी, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनके साथ मित्रता करना, तो ये जरूरी है। स्पेशली बच्चे जब अपने टीन में अब आगे बढ़ चुके हैं, अब उनकी हाइट अब आके बराबर आ गई, अब दोस्ती, हाँ। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब जो है देन लॉट ऑफ केयर इज रिक्वायर्ड। जब बच्चे बीच के फेज में आते हैं तो डांट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि भटकने के चांसेस उन्हीं में होते हैं। लेकिन अब जब बच्चा बड़ा हो गया, अब उसमें दोस्ती भी करेंगे और दोस्ती के साथ साथ शिक्षा देंगे, ये पेरेंटिंग में हमको करना चाहिए। तब जो है बच्चे आपके साथ सब शेयर भी करेंगे। अगर मान लो कोई बच्चे ने आपसे कुछ शेयर किया और आपने उसके पेज कस दिया अच्छे से, अरे भाई पिताजी आज आपने बता दिया, आज के बाद आपसे चीजें छुपानी है, हाँ आप पेज कर सकते हो, आप गलत, तो इसलिए एकदम से पेश नहीं करना चाहिए। बी मोर एजुकेटिव, उनको शिक्षा दें, ठीक है जी, और बताएं देख जो तू कर रहा है जानता है सब करते हैं, नहीं करेगा बेटा तेरा बहुत नुकसान होगा बेटा, तेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए ना, तू रख ले यार, पढ़ाई अभी कर ले, मैं तेरी शादी करा दूंगा उससे, कुछ ना कर रहा है तो उसको लेटर लिख लिया कर, तो उससे फोन बात कर लिया कर, लेकिन ना ये जो अकेले में जो तू करने जाता है ना कभी कभी उसके साथ, ये मत क्या कर बेटा, इससे तेरा बहुत नुकसान होगा बेटा, देख तेरे गलत आते भी लगेंगे इससे, ठीक है ना, तेरा शरीर वीक पड़ेगा, तेरी बुद्धि वीक होगी, पढ़ाई से तेरा मन हटेगा, ठीक है बेटा, ये मत कर। देख तेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरे साथ हूँ यार, मैं तेरी शादी कराऊंगा भाई, तू मेरी शक्ल तो दिखा दे एक बार मेरी होने वाली बहू की। तो इस तरह से हमें बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। अगर कनेक्ट रहेगा बच्चों के साथ तो उनको हम शिक्षा दे पाएंगे, कभी वो गड्ढे में गिर रहे होंगे उनको बचा पाएंगे, कनेक्ट नहीं होगा गए होगा आपसे। साथ ही बच्चों को थोड़ा समय भी देना चाहिए, जो उनको समय देगा उनको संगति दे देगा। भाई बुरी संगति कैसे आती है बच्चे के जीवन में, बुरी संगति समय देती है उसको, जबकि वो ये उदास है, कहता है क्या होगा भाई, क्या होगा यार, अरे उदास हो यार, क्या कर रहा है यार, अबे दो सुट्टा मार देख, तेरी टेंशन खो जाएगी, देख मार ले यार, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं भाई, मैं 6 साल से मार रहा हूँ, ये वैसे ही उन्होंने बना होता है कैंसर वैंसर, कुछ नहीं होता यार, तू बता तू दुखी क्यों है। इसलिए बुरी संगति क्या कर रही है, टाइम दे रही है, टाइम देती है क्योंकि माता पिता टाइम देते हैं, इसलिए तो माता पिता को बच्चों को टाइम भी देना चाहिए, दे शुड गिव टाइम। जैसे कहीं एक बार एक बेटा था, उसने बोला पिताजी को, कहता पापा पापा आपके मंथ की सैलरी कितनी है पापा, तो पिता ने कहा बेटा मेरी मंथ की सैलरी बेटा 90,000 रुपए। तो वाह पापा, तो पापा फिर आपकी एक दिन की सैलरी फिर कितनी हुई, बेटा एक दिन की सैलरी मेरी होगी बेटा 3,000 रुपए। तो वाह पापा, और आधे दिन की सैलरी फिर कितनी होगी पापा, 1,500 रुपए। अच्छा पापा, मैं अगर आपको 1,500 रुपए दूं, क्या मेरे साथ आधा दिन बिताओगे मेरे साथ, विल यू स्पेंड हाफ डे विद मी इफ आई गिव 1,500 रुपीस। मैंने अपनी पिगी बैंक में इकट्ठे किए 1,500 रुपए, एक दिन मेरे पापा से मैं समय खरीदूंगा। गॉड, बहुत ही शर्मनाक बात है पिताजी के लिए, इसलिए वी शुड गिव टाइम टू चिल्ड्रन एज वेल। हम नहीं देंगे तो बुरी संगत जी टाइम देंगे, फिर बाद में रो रहे होते हैं, देखो जी हमारा बच्चा क्या निकला, हम क्या थे, ये क्या निकला, ये आपकी मेहनत है जी, आपने बच्चे को समय नहीं दिया, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट बैड एसोसिएशन, नाउ ही इज स्पॉइल्ड, सो वी शुड गिव देम टाइम also. Thank you so much, bro. There's a question around women working. That is it okay for girls to go outside and work, or should they prefer to be housewives? And one more specific question, that is it okay for a girl to join the army, because there is someone who wants to and they are currently studying in college. ये आर्मी के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा दैट लेडी शुड जॉइन आर्मी, क्योंकि भगवान ने ना हर एक को अपना अपना स्वभाव दिया है, हर एक भगवान ने सबको अपना शारीरिक स्वभाव मानसिक स्वभाव दिया। So I don't vouch for ladies joining army. Ladies are meant for doing some other work जो कि पुरुष नहीं कर सकते, और वो भी महान कार्य है। ये तो हमारी मीडिया ने फैलाया हुआ है, आपने बच्चे पाले क्या, आपने सिर्फ घर ही संभालना है, आप बहन जी बन के रहे हो जिंदगी भर। ये नैरेटिव किसने बनाया, मीडिया ने बनाया। घर संभालना, बच्चों को संस्कार देना, ये सबसे ग्लोरियस काम है। मानुषी चिल्लर से जब पूछा था हु बिकेम मिस वर्ल्ड कि सबसे हाईएस्ट पेड जॉब कौन सी होनी चाहिए, उसने कहा माँ की जॉब, माँ का जो कार्य है सबसे ऊंचा है। पर हमारी मीडिया ने क्या बना दिया उसको, तो आप बहन जी हो, आप बहन जी रहे बस, बाहर नहीं निकले ना, आए किचन और उसमें भी आपकी जिंदगी बीत गया, हाय हाय।
ये रॉन्ग नैरेटिव है एक्चुअली। तो इसीलिए घर का काम संभाला ये भी बहुत ग्लोरियस है। बाकी लेडीज को कभी कभी काम करना पड़ता है, मान लीजिए घर में ना फाइनेंशियल सोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो उस वजह से काम करना पड़ता है लेडीज को। तो ऐसा नहीं, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी दे कैन नॉट डू, दे कैन डू। आर्मी के लिए ऑफकोर्स मैं ना बोलूंगा, बट बाकी चीजें करना चाहें क्षमता के तौर पे कर भी सकते हैं। हालांकि बेस्ट रहता है कि ना घर पे रह के बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर में रह के डीटी वर्शिप करना, घर में रह के भागवत श्रवण करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अगर ये करिए दिस इज बेस्ट फॉर देम। पर अगर फाइनेंशियल नीड्स हैं दे कैन वर्क आउटसाइड एज वेल, लेकिन वर्किंग में आई रिकमेंड टीचिंग जॉब इज बेस्ट फॉर देम। टीचिंग जॉब क्या बहुत सात्विक जॉब्स है टीचिंग जॉब्स, लेकिन जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती है दे आर टू डिमांडिंग एंड दे आर एक्सप्लॉयटेटिव आल्सो टू सम एक्सटेंट इन मेनी ऑफ द केसेस, सम ऑफ देम आर ऑफ कोर्स रिलैक्स। तो इस तरह की कोई सिंपल नॉन डिमांडिंग जॉब अगर मिल जाती है, अगर दे कैन डू, ताकि वो घर पे भी समय दे सकें और साथ में फाइनेंशियल अर्निंग भी कर सकें। तो इस तरह से ऑफ कोर्स दे कैन वर्क इन देयर इज फाइनेंशियल नीड। पर अगर पति अगर अच्छा कमाते हैं, सो बी एट होम, घर पे रह घर संभालिए, आप पति को भी संभालिए, बच्चों को भी संभालिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए। दिस इज बेस्ट फॉर द लेडीज एक्चुअली। Thank you, bro. Many times we read Prabhupada books and Bhagavad Gita and basically practice Krishna consciousness, get inspired. But when we have to go out and there are situations where we have to fight distractions or Maya in any way, then we tend to forget the philosophy. So how should we? देखिए, अगर आप दिन भर में काम कर रहे हैं और आप भगवान को भूलने का पूरे चांसेस रहते हैं। आप एक बार आप रोजगार में लगे तो वहां पर कई चीजें हैं, ये ईमेल आया, ये मीटिंग हुई, उसने आपके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया, उसने ये हो गया, वो हो गया, फलना हो गया, ढमका हो गया। तो इन सब में क्या है, कृष्ण को भूलने के चांसेस रहते हैं। हम कृष्ण को ना भूलें इसके लिए क्या करना चाहिए? मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर आपने सुबह सुबह भगवान के साथ डेट मार लिया अगर, तो दिन भर में ना आपको भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, भगवान आपको याद होते रहेंगे। भगवान को आपको याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान आपको याद होते रहेंगे। ऐसे डेट पर अगर कोई जाते हैं ना सुबह सुबह, मान लो मैंने डेट मारी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फिर उसकी ना बातें दिन भर जहन में आती रहती हैं। वो मुझे ये बोली थी, फिर मैं ये बोला था, फिर मुझे ये बोली थी, फिर उसको यूँ बोला था, फिर उसने बालों को ऐसे किया था, तो उसने अपने बालों को फिर ऐसे किया था, फिर उसके बाद जब यहाँ पर आए तो उसने फूंक मार दी। दिन भर में उसकी यादें आती रहती हैं। क्यों? मैंने सुबह सुबह गर्लफ्रेंड के साथ डेट मारी ना इसलिए। तो सुबह सुबह अगर आप हरि के नाम के साथ डेट मारोगे अगर, तो दिन भर में आपको हरि को याद करना नहीं पड़ेगा, हरि याद होते रहेंगे। जैसे काम कर ही रहे ना, हरे राम, तो सुबह सुबह यही हुआ ना, हरे कृष्णा। जैसे दिन भर में यही हो, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। देखो सुबह सुबह यही काम किया, अच्छे से किया, घुस के किया, जान लगा के किया। ठीक है जी, ओके, नाउ लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। Sure. Okay, there are many questions I'm trying to see. One question is, how do we learn shloka recitation and remember shloka? श्लोका कैसे याद किए जाएं? हमने पिक्चरों के गाने कैसे याद किए थे? गा गा के वो चलता रहता था, हम गुनगुना रहे थे, बस गाते 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 वो जी याद हो गए जी, फिल्मी गाने याद हो गए। श्लोका भी ऐसे याद होता है, श्लोका भी ऐसे याद होते हैं। कोई यू कैन चूज अ श्लोका ऑफ द वीक। इस महीने इस हफ्ते हम ये श्लोका याद करेंगे। दैट्स इट। मच्चित्ता मदगत प्राणा, मच्चित्ता मदगत प्राणा, बोधयन्ता परस्परं, बोधयन्ता परस्परं, बोधयन्ता परस्परं, बोधयन्ता परस्परं। अगला क्या था? कथन्तश्च मां नित्यं, कथन्तश्च मां नित्यं, कथन्तश्च 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 मां नित्यं, कथन्तश्च 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 मां नित्यं। अगला क्या है? हाँ, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें आइए चकला बेलन करके कर सकते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे करे श्लोक याद हो जाता है। ऐसे गाते 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 श्लोक याद हो गया। आपने एक हफ्ते में श्लोक याद किया, साल में आपके 50 श्लोक याद हो गए जी। जिसको 50 श्लोक याद होंगे उसको पंडित मानेंगे। अरे जी पंडित जी को बहुत श्लोक पता है। कैसे याद किए? कहते गा गा के, बस और कुछ नहीं, चलते फिरते गाते रहो, बस दैट्स इट। आज श्लोका लिखना है दालों के डब्बों के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, जहां पर आप शेविंग करते हैं वहां पर, बस तो थोड़ी शेविंग होती रहेगी। हाँ, आज का श्लोक क्या है भाई? हाँ, ये शाम पापम।
आगे क्या भाई? जना नाम पुण्य कर्मणाम आएगा ना, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता हाँ आएगा जी तेषां नित्य विमुक्ता हाँ and then it's वो श्लोक कहता है ना येषां त्वन्तगतं पापं जननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता हाँ भजते माम जड़ावृता भजते माम जड़ावृता श्लोक है याद that's it बस गाते गाते श्लोक याद हो जाते गाते रहो करते रहो ठीक है डिवोटीज हम आप यहीं पे विराम लेंगे आप सही भक्तों से Thank you so much, Prabhu. Hare It was a Krishna. really, really amazing session. More than 1.5 hours, we didn't even realize how it passed. Yeah. And so many devotees are still here, still asking questions. And we can really see, Prabhuji, you are the director of Vaikuntha Players. Your answers are also like that. We can actually see ourselves practicing what you're saying by your action. So thank you so much, Prabhu. Thank you everyone. Yes, Hare thank you, Krishna. everyone. Shri Shri Radha Gopinath ki jai. गोपाल जी की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय, तारिताय गोप्रवनंते, हरि 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 ओ हरे कृष्णा. Just one small announcement. Next Sunday, we have His Grace Dinabandhu Prabhu, who is very, very well known. He's Vrajvasi. He stays in Vrindavan, and he's very well known for taking devotees around Vrindavan for Vraj Parikrama also. And he has very kindly agreed to come and give us a very special session on the occasion of Radhashtami. So please do come next Sunday and attend. And stay connected with all our groups as always, so that we can get you many more such sessions with amazing speakers. Thank you so much, everyone. Hare Krishna.